Yes. So, first of all, a very warm welcome to all of you who have come here for this orientation seminar on CA Inter. So, this is basically for those students who have written their CA Foundation examination and are waiting for the results and are positive about clearing. That's why they're sitting here, right? Yes. Yes. So, why this seminar? What is so special about this seminar or orientation, isn't it? See, when you clear your CA foundation, obviously you'll have certain doubts in your mind, correct? So with our experience, with our learning, we have understood those doubts and we have tried jotting down those doubts. We have tried putting those doubts in one place and help you understand those things so that it is better for you, or it is, good for you to take a proper decision. So our idea is to cover all those doubts here in this particular seminar and help you take a proper decision. The mode of communication, for this particular orientation seminar will be English and a bit of Hindi where required. तो थोड़ा हिंदी भी बात करूँगा मैं बीच में, बट मैक्सिमम इंग्लिश होगा. तो स्टूडेंट्स को तो समझेगा ही जो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी समझ सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत हिंदी इसीलिए यूज़ करेंगे. सॉरी, आई कैन नॉट cover any other language like Marwadi or Telugu or Gujarati, वो possible नहीं. Hindi is what maybe slightly we can use. Right. So what are the frequently asked questions by you, that is by the student, when he passes CA foundation? Sir, what is the last date for registration with ICAI? Do we need to register again with ICAI or not? Because we have already registered with ICAI for CA foundation. We have already got some SRO number, isn't it? So that is the first doubt which you get. So let me tell you that there is compulsory registration required for even CA Inter with ICAI. So what is the last date for that? What is the fee structure? Do you need to pay fee again to ICAI apart from the coaching which you will be taking for CA Inter? है ना भाई, CA फाउंडेशन में हमने रजिस्टर किया था, वापस हमको रजिस्टर करना है क्या? अगर करना है तो लास्ट डेट क्या है और उसके लिए अगेन फी है क्या? अगर फी है तो क्या है, राइट? ये डाउट होगा. कैसे रजिस्टर करते हैं? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज व्हाट अगेन विल बी बॉदर्ड. देन कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे है? वी हैड लाइक 4 पेपर्स इन आवर सीए फाउंडेशन, बट नाउ इन सीए इंटर विल वी हैव अगेन 4 पेपर्स और विल वी हैव मोर पेपर्स, because we heard that there is some group sort of structure here, right? These probably again might be your doubt which we are trying to cover here. Then what level of objective is expected from you? जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो कोई ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ते हो ना, रादर आप पढ़ाई के अलावा भी बात करो तो कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं? यहां पर आए हो, कुछ ऑब्जेक्टिव है? यस और नो? एक पान शॉप में एक बंदा बैठा है, एक होटल में एक बंदा बैठा है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है? यस सर, पान शॉप का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, राइट? पान शॉप पे जो खड़ा है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टाइम पास. तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव है. सो सेम वे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव सेट बाय आईसीआई फॉर अ स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग सीए इंटर? वी शुड अंडरस्टैंड, राइट? वैसे ही फिर भाई दोनों ग्रुप लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, बेनिफिट्स है नहीं है फॉर बोथ द ग्रुप्स, और शैल वी गो फॉर ओनली अ सिंगल ग्रुप? ओके, व्हाट आर द डीमेरिट्स इफ वी गो फॉर अ सिंगल ग्रुप? दैट ऑल्सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन what is the passing criteria? Examination का passing criteria क्या है, कब होता है? That we would like to understand. Then as some of you have interacted with me before starting this, that sir, why should we join TopYug? What is so special about it? That's where we have come to know what is TopYug all about. Who are you guys? Isn't it? So we'll share something about us as well, that is approach at TopYug and the team of TopYug. Okay, faculty, when I say, we are talking about team TopYug. Then what should be a roadmap? When you start your coaching till the time you to complete your examination, and then later when you pass CA Inter examination, what exactly should be a roadmap? That I am trying to cover. ठीक है? और कुछ आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे तो वो भी हम लेंगे. तो इस तरह से we will get an idea about overall, what do you say, what is CA Inter all about, what is TopYug all about, what exactly should be your approach. ऐसे हम लोग 3-4 चीज़ें इसमें ब्रॉडली कवर करने वाले हैं. ठीक है, राइट? सो स्टार्टिंग विथ, डू वी नीड टू रजिस्टर अगेन फॉर सीए इंटर? यस, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली, फिर से रजिस्टर करना है. फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वापस इंटर में रजिस्ट्रेशन करना है आईसीएआई के पास, जिसकी लास्ट डेट है 1 March 2020. दैट मीन्स इफ यू वांट टू राइट सीए इंटर एग्जामिनेशन इन November 2020,
you'll have to get registered with ICAI before, on or before 1st of March 2020. ठीक है. Next, fee क्या होगी? So the fee details or fee structure for this will be that you'll have to pay 15,000 if you are opting for both the groups. If you are getting registered for both the groups with ICAI, I'm saying, तो 15,000 will be the registration fee. Students activity के नाम पे और एक 2,000 आपको पे करना है, 2,000 more, then 1,000 rupee for registration for the articleship. That is another one. So put together how much? 18,000 will be the fee if you are taking both the groups. But if you are going for one group now, then you'll have to pay 13,000. One is 11,000 and then 2,000 more for that student's activity fee. Correct. So 13,000 is what you need to pay now. But again, when you register for another group, let's say you have registered only for one group now, so you'll pay 13. When you register for another group, that is second group, you'll pay again what? 13 plus one more. What is that? Registration जो article के लिए है वो एक 1,000 और लगेगा आपको, तो वो भी पे करना रहेगा. यानी roughly around some 26-27,000 you'll have to pay if you are going for registration group by group. But if you register at one time for both the groups, then you'll have to pay how much? 18,000. ठीक है, 18,000 देना रहेगा. ठीक है. डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्कीम डिफरेंट है, बट आई प्रिज्यूम हियर देयर इज नो वन फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री. And what I mean by direct entry is those who have completed their graduation and wants to pursue CA, then they can directly get into CA Inter. तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं बैठा है, करेक्ट? तो उस एरिया को मैं टच भी नहीं करूंगा. आई विल नॉट गेट इनटू डायरेक्ट एंट्री स्कीम बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट देयर. ओके, आई विल टेक अप ओनली दोज पॉइंट्स विच आर कंसर्निंग CA फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. डेट तो पता चल गई, फी पता चल गया. अब प्रोसीजर क्या है? ICAI.org वेबसाइट है. स्टूडेंट्स नोज दिस, राइट? यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट and in that you will have one tab called a students tab where you have some course registration forms which you have to open it and fill it. वो fill कर देंगे आप. उसके बाद में fill करने के बाद में what is that you are supposed to do? You will have to download that. You will have to make the payment. ठीक है, वो फॉर्म आप क्या करोगे? फिल कर दोगे ऑनलाइन और पेमेंट कर दोगे. पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड या फिर आपका जो है बैंक ट्रांसफर्स वगैरह, उससे पेमेंट हो जाएगा. वो पेमेंट जो भी नंबर, रेफरेंस नंबर रहेगा वो भी आप उस फॉर्म में डाल दोगे. प्रिंट आउट निकाल लोगे उसका. एंड देन आफ्टर टेकिंग आउट दैट प्रिंट, ओके, फिलिंग इट अप, मेकिंग द पेमेंट एंड देन टेकिंग आउट दैट पर्टिकुलर प्रिंट. नाउ दैट प्रिंट आउट within 7 days you have to submit to the regional office along with one passport size photograph and 12th mark sheet. 12th mark sheet, photocopy, not original copy. Please don't submit any of the original documents unless stated or required. Every time they'll ask for what? Photocopy of that. So you'll have to submit a photocopy. Photocopy, form plus one passport size photograph. Now say, sir, shall we submit even the printout of that mark sheet which we get it on the internet? Because when you clear your CA foundation, you'll have some mark sheet, right? On internet you'll get it. So shall we attach that also? वो भी हम attach करें क्या वो mark sheet? वो आपकी मर्जी, वैसे तो लिखा हुआ नहीं है guidelines में. Normally people attach that as well along with the application form which you have filled. ठीक है? So application form, passport size photograph और उसके साथ क्या जाएगा? Mark sheet. ये 3 चीज़ तो कंपलसरी है. उसके अलावा आप चाहिए तो वो फाउंडेशन की मार्कशीट भी लगा सकते हैं. ठीक है, जो कि सिर्फ इंटरनेट की प्रिंट आउट है, वो एक्चुअली ओरिजिनल मार्कशीट है नहीं. राइट, ये सबमिट कहाँ करेंगे? यू विल सबमिट दिस विद रीजनल ऑफिस विद इन 7 days ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विच यू हैव डन. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली इसके बाद दे विल सेंड यू एन एक्नॉलेजमेंट लेटर दैट वी हैव रजिस्टर्ड यू फॉर CA इंटर कोर्स. And your SRO number, same SRO number which you have got will continue. So that's an acknowledgement that you are registered with ICAI for CA Inter. You need to receive that letter. Okay? चलिए, इतना समझ में आया? So this is with sorry, by post or by email. Mostly by email only it is received. नहीं, post. Post it will be received. Otherwise email में आ जाएगा. तो वो acknowledgement आना जरूरी है. If you receive acknowledgement from ICAI, that means you are registered. Next, course structure. If I talk about now the next aspect, एक aspect था registration. Now I'm talking about course structure.
course structure, I mean the structure of the course has got two groups, group 1, group 2. क्या बोलते हैं हम लोग? Group 1, group 2. In these two groups we have 4 papers each. First group has got 4 papers and second group also has got 4 papers. Put together how many papers? 8. आप बोलेंगे सर वहां तो आपने सब्जेक्ट लिखा है और आप बोल पेपर रहे हो, राइट? सी, देर आर अ फ्यू टर्म्स विच वी यूज इंटरचेंजेबली. देर आर अ फ्यू टर्म्स विच विच यूज इंटरचेंजेबली. यू अग्री? जैसे पहले मोबाइल यानी क्या होता था? नोकिया. करेक्ट? होता ही था ना. मोबाइल का दूसरा नाम क्या था? नोकिया. नोकिया नंबर दे दे भाई, मतलब मोबाइल नंबर दे दे. या अभी जेरोक्स, फोटोकॉपी. एक्चुअली वी शुड बी यूजिंग द टर्म फोटोकॉपी. मैगी, नूडल्स. एक्चुअली मैगी इज नॉट, हाँ मैगी तो ब्रांड है. नूडल्स इज व्हाट यू आर ईटिंग. यू कैन नॉट से आई एम ईटिंग मैगी, बट वी से वी ईट मैगी. आज मैगी खाना है मम्मी, है ना, बोलते हैं ना मम्मी को. So point is that there are few terms which are used interchangeably. Same way subject and paper is used interchangeably. तो सब लोग वैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने भी यूज कर लिया. बाकी है ये पेपर्स. पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सब्जेक्ट्स तो पेपर से ज्यादा है. ठीक है, वो आगे बताऊंगा. ओके, सो सर डू वी नीड टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स एंड देन स्टार्ट विथ आर्टिकलशिप? आंसर इज नो. इफ यू कंप्लीट either of the groups, that is group 1 or group 2, and complete 4 weeks of integrated course on information technology and soft skills program conducted by ICI. बहुत बड़ा हो गया ना. ओके, ICITSS एक प्रोग्राम है. ये कौन कंडक्ट करता है? ICI. हम लोग नहीं, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ICI. 4 वीक्स का प्रोग्राम है. दैट यू विल हैव टू कंप्लीट. प्लस यू हैव टू कंप्लीट ईदर ऑफ द ग्रुप्स. या तो ग्रुप 1 कंप्लीट करो या ग्रुप 2 कंप्लीट करो. फिर आप एलिजिबल किसके लिए हैं? आर्टिकलशिप. अच्छा, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली CA फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम स्टूडेंट्स. ओके, सो वंस यू कंप्लीट ईदर ऑफ द ग्रुप्स प्लस दिस प्रोग्राम, देन यू आर एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप. ठीक है, नेक्स्ट. Now sir, groups you said 8 papers are there. Which are those 8 papers? So let's just understand those 8 papers and whether those are 8 subjects or not. Okay. Now group 1 comprises of 4 papers. Paper number 1 is accounting. Paper number 1 is what? Accounting. Paper 2 is corporate and other laws. Paper 3, cost and management accounting. Paper number 4, taxation, which is direct and indirect both. Paper number 5 in group 2, okay, 5 to 8 is in group 2, which is advanced accounting. Paper number 6, auditing and assurance. In short, we can say audit. Paper number 7 is financial management, which is in short called as, paper number 7 is enterprise information system, which is EIS in short, and strategic management in short, which is SM. ठीक है, EIS and SM. 8 is financial management, that is FM, and economic for finance, जिसको लोग economics ही बोलते हैं. ठीक है, ये 8 पेपर्स हैं. समझ में आ गया? क्या समझ में आया? समझ में कुछ नहीं आया? You just got acquainted that okay, right? You just got familiar that okay, there are how many papers? 8 papers divided into 2 groups, 4 groups. 4 papers को एक ग्रुप बना दिया. उतना ही समझ में आया? हाँ, उससे ज्यादा हो सकता है. बोले सर अकाउंट्स पढ़ा था पहले, तो अकाउंटिंग पता है क्या होती है, राइट? एडवांस अकाउंटिंग थोड़ा हायर लेवल होगा. ठीक है. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, sir again we have read in foundation mercantile laws where we have covered some part of Companies Act. So Companies Act, corporate law, company law. Okay, so some other laws are also there. That's why the name is what? Corporate and other laws. Okay, ठीक है. Then do you know anything about cost and management accounting? Come on guys. Do you know anything about cost and management accounting? Probably you'll say no sir. But from the name can we understand something? हाँ भाई, ये सेलिंग प्राइस रहता है, ये कॉस्ट प्राइस रहता है, वो अराइव करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे, राइट? आगे मैनेजमेंट को अगर कुछ डिसीजन लेना है तो वो प्राइस के बेसिस पे दे विल टेक द डिसीजन, राइट? दे विल कंट्रोल कॉस्ट, दैट इज वेयर दे विल बी एबल टू हैव ग्रेटर मार्जिन्स. कुछ तो समझ में आ रहा है? तो ये सब मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ. दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली इन पेपर नंबर 3, विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके. पेपर नंबर 4, टैक्सेशन. तो सर ये तो पता ही है, इसके लिए तो CA ज्वाइन किया था कि पापा का टैक्स कैसे बचाएं, राइट? या आगे जाकर हम लोग कैसे सेव करें टैक्स, इजंट इट? टैक्स प्लानिंग कैसे करें? इसमें 2 टाइप के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट.
डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। सिर्फ जीएसटी नहीं है, बट अभी आपके लेवल पे जीएसटी है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सिर्फ जीएसटी नहीं होता, कस्टम्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, बट दैट इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड नाउ। यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एट दिस लेवल, सीए इंटर लेवल पे, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये हो गए 4 पेपर्स ऑफ ग्रुप 1। ईच पेपर विल हैव अ वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। हाउ मेनी? 100 मार्क्स। नाउ कमिंग टू ग्रुप 2, वेयर अगेन यू हैव गॉट 4 पेपर्स। एज आई सेड, एडवांस अकाउंटिंग, वो तो अकाउंटिंग फिर से थोड़ा हायर लेवल, राइट? हायर लेवल क्या है वो समझ में आएगा आपको। अभी मे बी आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज you don't know anything about it. So I'll just say it's an advanced level of accounting which you have to do, which is not covered in group 1 but will be covered in group 2. Auditing and assurance, ये एक और पेपर है। ये क्या है? ऑडिट सुना तो बहुत बार है, ऑडिट ऑडिट ऑडिट, है ना? ऑडिटर बन के जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या करता है? बेसिकली वेरीफाई करता है। ऑडिट यानी क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? क्या चेक करेगा? अकाउंटिंग ठीक से हुई है या नहीं। यानी ये हो गया फाइनेंशियल ऑडिट। वैसे और भी टाइप के ऑडिट्स होते हैं, बट हम कौन सा ऑडिट पढ़ेंगे? हमारा ज्यादा फोकस कहां पर होगा? ऑब्वियसली फाइनेंशियल ऑडिट पे होगा ना, बिकॉज वी स्पेशलाइज इन व्हाट? एयर पोल्यूशन क्वालिटी चेक करने में हम स्पेशलाइज करते हैं? नहीं ना। गाड़ी का टेस्टिंग का क्वालिटी कंट्रोल हम लोग को चेक करना होता है? नहीं। वी स्पेशलाइज इन अकाउंटिंग, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी स्पेशलाइज इन समथिंग रिलेटिंग टू फाइनेंस फील्ड। सो हम लोग जो ऑडिट करेंगे या हम लोग जो पढ़ने वाले ऑडिट में, हम लोग प्रिडोमिनेटली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड। तो अकाउंटिंग ठीक से हुई है या नहीं, और अलग अलग टाइप के ऑडिट कौन से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंटरनल ऑडिट, कनकरेंट ऑडिट, ये सब तो आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 7 है EIS एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। EIS यानी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समथिंग रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी। आपको लगता है टेक्नोलॉजी मैटर करती है? डेफिनेटली इट मैटर्स। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई छोटे शॉप वाले से आप पूछे, जरूरी है टेक्नोलॉजी, जरूरी है कंप्यूटर, जरूरी है मोबाइल, जरूरी है इंटरनेट, वाईफाई? कम ऑन, यस, राइट? अकाउंटिंग करनी है, टैली चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। रादर एक छोटा सा स्टॉक फाइंड आउट करना है कि भाई स्टॉक है कि नहीं, तो पहले क्या होता था? छोटू देख क्या है, क्या अभी बोलते क्या छोटू देख क्या? नहीं, कंप्यूटर पे चेक किया है, नहीं है, पता चल गया। नहीं है तो तुरंत ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? द वे वी आर डूइंग बिजनेस नाउ, द वे वी आर कंडक्टिंग थिंग्स नाउ और कैरिंग ऑन थिंग्स इज टोटली चेंज्ड। सो इन ऑर्डर टू मीट दोज चेंजेस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड विद दैट, राइट? इसीलिए एक सब्जेक्ट है छोटा सा आपके पेपर नंबर 7 में, जिसका नाम क्या है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS इन शॉर्ट, जिसको पहले हम IT बोलते थे। अभी नए सिलेबस में चेंज होकर नाम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। और एक उसके साथ क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, वन ऑपरेशनल मैनेजमेंट, अदर वन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। मम्मी को चावल बनाना है, ठीक है? घर पे चावल नहीं है, यू हैव टू बाय राइस बिकॉज शी वांट्स टू कुक राइस एंड यू डोंट हैव राइस एट होम, सो गो एंड बाय राइस। विच टाइप ऑफ डिसीजन, विच टाइप ऑफ मैटर इट इज? डे टू डे मैटर, रूटीन डिसीजन है? बोलो भाई, यस और नो? कॉस्ट कितना लगेगा 1 किलो राइस खरीदने में? राइट, बहुत कम। मैं प्रिसाइजली नहीं जाता हूं क्योंकि वो बोलेंगे 70, भाई हम तो क्या बोलते हैं बासमती राइस खाते हैं, तो इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट 50 बट समथिंग लोअर, करेक्ट? नेक्स्ट, आपको CA करना है। CA करना है, कितना कॉस्ट जाता है, कितना टाइम लगता है, और आपको क्या लगता है आप डेली बेसिस पे ऐसा डिसीजन लोगे कि आज CA करना है, कल लॉ करना है, परसों CS करना है? नहीं ना, ये नॉन रूटीन डिसीजन हुआ। डे टू डे बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता है, ये डिसीजन एक बार लिया जाता है और उसका इंपैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। तो उसका मतलब हुआ ये कौन सा डिसीजन है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर विल बी सम रूटीन डिसीजंस, रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस, एंड देयर विल बी सम नॉन रूटीन डिसीजंस। जो रूटीन होंगे उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है। लेकिन जो नॉन रूटीन होंगे उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, और वो चेंज बार बार नहीं किया जाता। तो वैसी जो चीजें हैं बिजनेस रिलेटेड, आज एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, एक कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रही है, तो ये सब करते हैं ना, ये सब आपको पढ़ना है कहां पर? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, SM जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। देन पेपर नंबर 8 इज व्हाट?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर सिंपल है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विटामिन एम. यस और नो? डू वी वर्क फॉर मनी? नॉट जस्ट फॉर मनी बट यस वी वर्क फॉर मनी, नो डाउट अबाउट दैट. सबको पैसा चाहिए. एक गुरु महाराज जो संन्यास ले चुके हैं उनको भी पैसा चाहिए कि नहीं? क्यों चाहिए? बिना पैसे के क्या होगा? मे बी दे विल नॉट अर्न बट दे ऑल्सो नीड मनी. एंड मनी डू यू थिंक इज इन अबंडेंस? नो, स्कैरसिटी है नहीं. जिस चीज की भी स्कैरसिटी होगी या अबंडेंस में भी होगा, डू यू थिंक यू नीड टू मैनेज इट वेल? यस. सो दैट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज व्हाट इज कवर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मिनिमम रिसोर्सेज डिप्लॉय करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना है अपने को. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मजा आ रहा है सब्जेक्ट सुन के? कुछ नहीं? नहीं समझ में तो आ रहा है. मजा आ रहा है क्या कि अरे यार इतना अच्छा पढ़ना है अपने को, अकाउंटिंग पढ़नी है, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है, ईएएस पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है. और मजा आना इसलिए जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू थिंकिंग कि अरे मजा क्यों भाई, मजे के लिए पढ़ते क्या? नहीं तो किसके लिए? रोने के लिए पढ़ते हैं क्या? मजा ही करना है. आगे जाके यही आपका प्रोफेशन होगा. प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीजें शायद आप बोलोगे बीकॉम में भी हम पढ़ते हैं, राइट? वी स्टडी इन बीकॉम एज वेल, बट देन डू यू थिंक you read that in BCom with the perspective of using that in your day to day life? Probably no. You read that कि भाई ग्रेजुएट का डिग्री आ जाए, नहीं तो शादी नहीं होती आजकल. वो बीकॉम करना जरूरी ना सब, नहीं तो बच्ची नहीं मिलती अपने को. तो दैट इज वेयर प्रॉबली योर माइंडसेट इज. या सोचते भाई दुकान में बैठना है, अगर बोलेंगे बच्चा ग्रेजुएट है तो एटलीस्ट थोड़ी इज्जत बढ़ती. सो जैसे पहले एक 10th मैंडेटरी था, फिर धीरे धीरे 12th हुआ, आज ग्रेजुएशन मैंडेटरी हो गया. बट वेदर दैट विल बी आवर प्रोफेशन और नॉट वी डोंट नो. बट वॉट एवर यूर रीडिंग हियर, whatever you're reading here is not going to be just in the books, not just going, you're not reading only for the sake of it. ये सारी चीजें आप क्या करोगे? यूज करेंगे प्रोफेशन में. ओके तो मजा आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोफेशन बनेगा आपका, दिन रात आप इसी में काम करोगे और मजा ही नहीं आता, डू यू थिंक you'll be able to work? Definitely no. So one has to understand दैट जितना ये आपके सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं, जितने पेपर्स आपके हैं, सारे ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली यूज होंगे. तो आप बोलोगे सर इसका मतलब सारे सब्जेक्ट सारे पेपर्स प्रैक्टिकल हैं क्या, या थियरी है? क्या है? थियरी है, प्रैक्टिकल है? सारा प्रैक्टिकल है. नहीं सर ऑडिटिंग थोड़ी प्रैक्टिकल है, लॉ थोड़ी प्रैक्टिकल है, ये तो थियरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं. अरे भाई जिस चीज को आप प्रैक्टिस में लोगे, जिस चीज को आप प्रैक्टिकली यूज करोगे, वो तो प्रैक्टिकल हो गया ना. लेकिन हम क्या सोचते हैं? ओनली व्हेन वी यूज कैलकुलेटर, नंबर्स, है ना, ऐड टैली हो रहा तो प्रैक्टिकल. अरे ऐसा थोड़ी है यार. विच एवर थिंग गोज ऑफ द पेपर, विच एवर थिंग कैन बी यूज्ड इन प्रैक्टिस, दैट इज प्रैक्टिकल. एंड ऑल दीज थिंग्स विच यू आर गोइंग टू रीड हियर आर प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रैक्टिकली यू विल अप्लाई देम. ओके समझ में आ रहा है ना? राइट. ओके सर, तो ये 8 पेपर्स पढ़ेंगे 4-4 करके. 100 मार्क्स का वेटेज है सारे का. ओके सारे 100 मार्क्स पेपर्स. ना अब मुझे बताओ कितने सब्जेक्ट्स हैं? पेपर्स तो 8 हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं? पेपर नंबर 1 and 5 2 सब्जेक्ट्स? यस, नो, 1 सब्जेक्ट अकाउंटिंग ओनली. नो, पेपर नंबर 1 and 5 आई सेड एक ही अकाउंटिंग ही अल्टीमेटली. 2 को डिवाइड कर दिया उन्होंने. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, क्या लगता है? 2 है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है, उसका इकोनॉमिक्स अलग है. EIS SM, EIS SM 2 पेपर्स हैं? 2 पेपर्स हैं? नहीं, पेपर एक है, पेपर नंबर 7, बट सब्जेक्ट्स 2 है. राइट. सो वैसे काउंट करके मुझे बताओ कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं? 1 2 3 4 and 5. डायरेक्ट टैक्स इज सेपरेट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स इज सेपरेट सब्जेक्ट. इसमें टैक्सेशन में 2 है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो कितने हो गए? 2 सब्जेक्ट, यानी 5 हो गया. इधर ना, इधर ये तो 5 में काउंट हो गया ऑलरेडी, एडवांस अकाउंटिंग, सो विल नॉट काउंट इट अगेन. छठा 6th one ऑडिटिंग, 7th one कम ऑन EIS, 8th one SM, 9th one and 10th one economics for finance. So that means actually papers are 8 but subject is more than 8. To be precise, maybe 10 is what you need to study. कितना टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए? नहीं, कितना टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए? यानी नाउ February you start off. Till what time you have? Okay, yeah, till your examination 9 months.
फरवरी से आप काउंट करोगे कितना, अक्टूबर तक, और नवंबर में आपको एग्जाम लिखना है, तो आपके पास कितना टाइम है, 9 months. Yes or no? That is where the limitation is, what you say, big, or you can say that is where the complication starts. लोग बोलते हैं सीए करना बहुत टफ है. क्यों टफ है? आपको क्या लगता है सारे सब्जेक्ट्स टफ है? अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो टफ है? बिल्कुल नहीं. But then the time which you have, the level with which they ask the question, the way which you have to understand or study is different. Because this is going to be your profession. पापी पेट. तो इसीलिए बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, और वो भी कम टाइम में ये सब करना है, तो वो एक बिगर चैलेंज है. इसीलिए राइट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. इसीलिए बोल सकते हैं कि आप रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, वो भी एक रीजन है, क्योंकि सबको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता या सबको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करता. गाइडेंस मिल जाता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं. तो सभी का रोल यहां पर रहेगा. दैट इज व्हाट अगेन आई विल टॉक अबाउट लेटर. सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट स्लाइड विच आई हैव टेकन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स. आप जब पढ़ रहे हो तो किस ऑब्जेक्टिव से पढ़ोगे? यू गेट वर्किंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. व्हेन यू रीडिंग कंपनी लॉ, यू जस्ट रीड फॉर द सेक ऑफ इट? नो. ऐसे पढ़ना है कि उस पर हम काम कर सके. इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना इनकम टैक्स नहीं, काम कर सकना, उसको यूज कर सकना. लाइक वी से नो, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर. यस और नो? सही है गलत है? गलत है. नो, कैसे सही है? Knowledge is power only when applied. You're not able to apply something which you have read, then how can you say it's powerful? है कि नहीं भाई? आपने सब पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में जाके लिखना नहीं आ रहा है, ऐसे पास कर देगा क्या आपको? तो फिर आप पास नहीं होगे तो पावरफुल कैसे होगे? यानी उसको अप्लाई करना जरूरी है गिवन द सिचुएशन. कोई भी चीज आप जो पढ़ रहे हो उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते, टैली तो पढ़ ली, पूरा टैली पढ़ लिया, लेकिन टैली आपको अकाउंटिंग करना आता नहीं है, जब आप प्रैक्टिकली करना चाह रहे हो नहीं आ रहा है, कुछ फायदा हुआ उसका? Right? No. So please understand, whenever you're reading something, you have to have that practical orientation. You need to have that working knowledge. Are getting it? तो ICI बोल रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ICI बोलता है कि ये ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए. When you study, always study with the practical orientation of the subject and develop a working knowledge. फाउंडेशन में कौन सा लेवल था? बेसिक. फाइनल में कौन सा रहेगा? एक्सपर्ट नॉलेज. Because you'll become a chartered accountant once you clear CA final. So obviously the level of knowledge which is required is expert knowledge. As of now, working knowledge is enough. But हम जब पढ़ेंगे तो हम क्या वही आइडिया से पढ़ेंगे, अरे working knowledge काफी है? No, but we should read with that approach of what? Getting that expertise, getting that expert knowledge. अपना आइडिया वही रहेगा. And that is possible only when we have practical orientation of the subject. If we are reading just for the sake of it, then it will not help. ठीक है? ना और आगे बढ़ते हैं. सो ये अभी जो डिस्कस किया वो क्या था? कोर्स स्ट्रक्चर. फर्स्ट पार्ट हमारा रजिस्ट्रेशन रिलेटेड था, सेकंड पार्ट हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या है, कितने ग्रुप्स हैं, क्या है, वो आइडिया आ गया. अब मैं किस में जा रहा हूं? जो एक बिग डायलेमा है आपके पास, वेदर वी शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप. सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स. पहला बेनिफिट क्या है? सेट ऑफ मार्क्स. पहला बेनिफिट क्या है? सेट ऑफ मार्क्स. ये क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ईच पेपर इज हैविंग द वेटेज ऑफ 100 मार्क्स. सब्जेक्ट नहीं, पेपर. सो टोटली 800 मार्क्स इज व्हाट इज द वेटेज, आउट ऑफ विच हाउ मच यू हैव टू स्कोर टू क्लियर 400. वेरी गुड. दैट मीन्स 50% मार्क्स. सो ईच पेपर यू शुड बी गेटिंग व्हाट? 50. ऐसा है ईच पेपर? ऐसा कुछ नहीं है. 40 is the passing mark in each paper, and overall you should see to it that you get 400 marks, that is 50%. Okay, we have taken an example here. It's very easy to understand with the help of an example if you just go through. Okay, देखिए set off समझाता हूं आपको. Case A, if you just observe, there is a student who has scored 40, 40, 40 in each paper. 40, 40 because individual paper you should score how much? 40. So how much he scored in group 1? Come on guys, answer. 160. Second group also he scored 40, 40, 40. किस्मत एकदम बुलंद थी उसकी, सब में 40, 40 आ गया. कितना हो गया इसमें भी? 160. 160 यानी टोटल कितना हो गया? 320. आप सोचोगे पास हो गया बंदा, नहीं हुआ. क्यों? 320 आउट ऑफ 800 ऑब्वियसली इज व्हाट? 40%, विच इज फेल, बिकॉज ओवरऑल कितना आना चाहिए? 50%. ये फेल हो गया.
केस बी लेते हैं. केस बी में क्या हुआ? फर्स्ट पेपर 54, सेकेंड 40, थर्ड 43, फोर्थ 52. वाओ सर, 2 में 50 भी आ गए अब तो. टोटल कितना हो गया? 189. कोई फायदा हुआ? नहीं. ग्रुप 2 48, 42, 48, 44, 47. कितना हुआ? 181. टोटल कितना है? 370. अगेन क्या हो गया? फेल, बिकॉज लेस देन 50%. सो ऐसे देखो तो सब में 40 प्लस है, 2 में तो 50 प्लस भी आ गए, बट स्टिल नॉट पास्ड. कम टू केस 3. इसमें तो दिख ही रहा है लाल धब्बा. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? You could see 35 and 39, so obviously it is what? Fail. Now come to case D. Observe. 40, 40, 40, 50, total is 170. Fail or pass? You'll say, sir, fail. 170. Less than 50%. Because एक ग्रुप में 400 मार्क्स का वेटेज है तो 200 आना चाहिए. ग्रुप 2 देखो, 80, 40, 60, 50. कितना आ गया? 230. 230 प्लस 170 कितना हो गया? 400. मतलब 800 में से 400 यानी 50% पास हो गया. आप बोलोगे नहीं सर, ग्रुप 1 में तो 170 आया. अरे लेकिन ग्रुप 2 में कितना आ गया? 230. जो तो 30 एक्सेस आया, दैट विल बी सेट ऑफ विथ द डेफिसिट विच इज देयर इन ग्रुप 1. बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ दोनों साथ में लिखा, नहीं तो क्या होता? फर्स्ट ग्रुप चला जाता. ना कम टू केस ई. वैसे ही आप देखो, फर्स्ट ग्रुप में 230 आ गए. अब मैं इंडिविजुअली नहीं बोलूंगा. 230 टोटल है फर्स्ट ग्रुप का. सेकंड ग्रुप का टोटल कितना है? 180. तो वैसा देखा जाए तो ग्रुप 2 फेल. लेकिन अगर आप दोनों मिला के देखें तो 410, और हर पेपर में 40 प्लस है, वो मस्ट है. अगर 410 आते, और देख आप समझ ही सकते हैं, जो थर्ड केस है 440 टोटल था उसका, लेकिन क्योंकि 2 पेपर में 30s में मार्क्स आए, 40 नहीं आए, इसीलिए वो फेल है. तो इधर आप देखें तो एवरी पेपर 40 और 40 प्लस, एंड टोटल इज 410, विच इज मोर देन 50%, सो पास्ड. So don't you think it's beneficial if you write both the groups at a time and get that set of benefit? Now you might say, no sir, I will write now one group, score 250. Next time when I write another group, I might get lesser than 200, but because 250 is there, पहले बार में 250 मार्क्स आ गए, 250, 50 ज्यादा मार्क्स हैं, तो वो यूज हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम. नहीं होता ऐसा. ऐसा नहीं होता है. एक बार लिखोगे, साथ में लिखोगे, when you write it together, then only you have that benefit of set off. Am I clear? That's the biggest advantage. Second one, if you want to join good firms, when you want to go for internship, articleship आप जब करना चाहोगे with good firms, big fours, जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लोगोस, ब्रांड्स, EY नाम सुना है तो, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉइट, KPMG, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, PwC, ये जो बिग फोर्स बोला जाता है, इनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज में है. इधर है 170 कंट्रीज. दैट मींस बिग फोर इज नॉट जस्ट बिग फोर इन इंडिया, बिग फोर इन द वर्ल्ड. अगर ऐसी जगह पे आपको आर्टिकलशिप करनी है तो आपको क्या लगता है? यू पासिंग वन ग्रुप एंड देन गोइंग एंड दिल टेक यू? नो, यू हैव टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स एट अ टाइम. इफ पॉसिबल विथ अ रैंक, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग और दे रिक्रूटिंग यू, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट. वैसे ही इनके अलावा भी और जो बड़े फर्म्स हैं, आपको क्या लगता है आप एक ग्रुप पास होंगे वो आपको ले लेंगे? ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु माइट हैव क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स एट अ टाइम, सो दे विल नॉट प्रेफर यू देन. सो द चांसेस ऑफ यू जॉइनिंग बिग फोर्स और बिग फर्म्स विल बी वेरी लेस, वेरी मिनिमल. आई विल नॉट से कोई चांस ही नहीं है, वो गलत है. मिनिमल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा चांस. दैट्स वेयर इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स. तीसरा, रैंक आना है. रैंक चाहिए हमको, AIR, भाई हमारा फोटो आए ICI न्यूज़लेटर में, राइट, जर्नल में, लोग हमको बुलाएं. रैंक आएगा तो होगा ना सब. वो कब होगा? जब आप बोथ द ग्रुप्स एक ही बार में लिखेंगे. इफ यू राइट बोथ द ग्रुप्स एट अ टाइम, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट यू कैन गेट रैंक, अदरवाइज नॉट. ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू फॉलो मी. सबको समझ में आ रहा है ना? और एक बेनिफिट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. जब इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं दोनों ग्रुप एक साथ, तो आप क्यों नहीं भाई? और आप अगर बोलोगे नहीं मैं तो नहीं लिखना चाहता, तो आप कंपटीशन में कहां रहोगे, आगे या पीछे? पीछे. यू विल बी बिहाइंड, बिकॉज एवरीवन इज राइटिंग बोथ द ग्रुप्स, और मोस्टली द स्टूडेंट्स आर राइटिंग और अटेम्प्टिंग बोथ द ग्रुप्स, एंड यू डोंट अटेम्प्ट. दैट मीन्स यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी अहेड. You will not have that competitive edge or advantage. So it's very important that we write both the groups at a time. है कि नहीं कंपटीशन? पापा से पूछे बताएंगे, मम्मी से पूछे बताएंगे कंपटीशन होता है कि नहीं. मम्मी, अरे मम्मी कैसे कंपटीशन भाई, मम्मी के साथ क्या कंपटीशन?
क्यों, बाजू वाली आंटी के साथ मम्मी का कंपटीशन नहीं होता क्या? हाँ, कौन सी साड़ी अच्छी है नहीं मालूम पड़, नहीं करते क्या कॉम्पीट? होता ही है ना, सब जगह कंपटीशन है। तो वैसे एनवायरनमेंट में अगर अपन हैं और अपने को पता है कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली अपने को अहेड रहना है, पीछे नहीं रहना है। वो तभी आएगा जब आप बोथ द ग्रुप्स लेंगे। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। आज शाम को क्या प्लान है आपका? देखिए, कुछ प्लान ही नहीं है, राइट? कुछ प्लान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही टाइम है, कुछ पता ही नहीं है कल क्या है। और वही मैं बोल दूं, कल एग्जाम है, तो फिर क्या करोगे? सर प्लान क्या है? पढ़ना है सर, आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक सर। तो डोंट यू थिंक व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग और एमिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, देन यू विल यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, बिकॉज यू विल बी फोकस्ड, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अभी एग्जाम तक आप लोग कैसे थे भाई? एकदम फोकस्ड, सीरियस, रोज मालूम था रूटीन, रोज सुबह 5 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, इतना पढ़ना है, यू वेर फोकस्ड। नाउ व्हाट हैपेंड? यस, वही तो। अभी कुछ है नहीं ना सब, जब कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली वो लोग उस चीज के ऊपर लग जाएंगे, अभी कुछ है ही नहीं। तो वैसा ही होने वाला है। अगर उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स ही, 4 पेपर्स ही प्रेफर किए, यानी एक ग्रुप ही जा रहे हैं, तो टाइम वेस्ट करेंगे ही करेंगे। बोलेंगे 9 महीने हैं अभी तो आराम से हो जाएगा, ओनली व्हाट 1 ग्रुप 4। एंड वो उस चक्कर में इवन दीज 4 पेपर्स प्रॉब्ली दे विल नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो 4 की भी वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे बोल रहा हूं मैं। मतलब ना ये पास होंगे ना वो, तो टाइम वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा क्या है, शुरू से भाई दोनों ग्रुप 8 पेपर, मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्यों, मुझे इतना पढ़ना है, तो ऑब्वियसली यू विल यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एटलीस्ट ऑफ डूइंग दैट। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होगा? कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा क्या? आप दोनों ग्रुप एक साथ करोगे तो नहीं बढ़ेगा। अरे यार मेरे में कुछ दम है। और अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर होते हो तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे ज्वाइन करोगे तो। अभी का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बात कर रहा हूं मैं, आगे के लिए भी इट विल बी ऑलवेज गुड। दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये क्या है? इंक्लूसिव लिस्ट है। इसमें चाहिए तो और 4 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, मैंने मेजर पॉइंट्स यहां पे कवर किए हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स बोथ द ग्रुप्स के हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मेरिट्स ऑफ सिंगल ग्रुप या डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स देख लेते हैं एक बार इसके। अगर वो नहीं समझ में आया तो ये समझ लीजिए। होता कई बार ऐसे होगा कि भाई बोथ द ग्रुप्स के मेरिट्स ठीक है यार, अब मैं आपको डीमेरिट्स बता रहा हूं सिर्फ सिंगल ग्रुप करने के। सबसे पहला चीज, कमान, आर्टिकलशिप रेप्यूटेड फर्म में नहीं मिल सकती। यू कैन नॉट गेट आर्टिकल्स इन अ रेप्यूटेड फर्म, गुड फर्म, इफ यू वांट टू। और अगर आप सोचो आप अच्छी फर्म में, बड़ी फर्म में ज्वाइन नहीं करोगे आर्टिकल्स, तो क्या होगा? आप जो पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे ठीक से। आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप सीए बन पाओगे क्या? चलो मान लो सीए बन भी गए, तो डू यू थिंक यू विल बिकम अ डिजर्विंग सीए? Yeah, because see, whatever subjects we are reading, as I've told you, are all practical oriented. We are going to use it in our profession. So if you join a firm where you can apply all these subjects practically, don't you think your confidence level will go up and your approach towards subject will be good? And when you become a chartered accountant, you will be deserving chartered accountant. Come on, just think what I'm trying to say. इसीलिए बहुत जरूरी है, if you want to become a deserving CA, तो अच्छी फर्म में आर्टिकल्स करना बहुत जरूरी है, बड़ी फर्म में आर्टिकल्स करना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब आप दोनों ग्रुप एक साथ लिखोगे और क्लियर होंगे, नहीं तो प्रॉबेबली इट विल बी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी नहीं हो सकता एक ग्रुप किया तो, ऐसा नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट चांसेस आप अपने आप कम कर रहे हो, अपने चांसेस विल बिकम वेरी डिम। ओके, सेकेंड थिंग, अब आप एक ग्रुप क्लियर कर लिए, आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, आर्टिकलशिप के साथ आपको दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी होगी। यू विल हैव टू स्टडी सेकेंड ग्रुप along with articles. Do you think it will be easier? No. Sir, ऐसे study is difficult. Now study with work. How much difficult it will become? And on top of it, if you have not taken coaching for that group, then along with articles, you have to study plus also go for coaching. 3 things, which is difficult, no? Strenuous. It will be very strenuous. Then why should we go for that? दूसरा चीज और, do you think they'll give you as much as leave you want? It won't happen. So taking leave also will be difficult. So you'll not have enough time for your preparation. That means you'll be differing. I have many cases, many of my past students who have written one group, joined articles, and 2 years they have not cleared their second group or other group. क्यों? लीव नहीं मिल रही ऑफिस से, काम के साथ प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, पढ़ना नहीं हो रहा है,
पीछे होते जा रहे हैं। इसीलिए एक बार लो, नाउ मैंने है, जी जान लगा दो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम लिख दो, दोनों ग्रुप पास हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। आर्टिकलशिप आराम से अपना सीए फाइनल के साथ साथ, सीए फाइनल में भी उतना टाइम मिलेगा, 2.5 years you'll have at your disposal to complete CA final का study and properly prepare and write the examination. Correct? Clarity also you'll have in mind. Okay, I am CA inter passed. Now, don't you think you have some confusion in mind as of now because results are not out? Just imagine with this situation you enter articleship because you have not cleared one group. How much of confusion you will have? So, my dear friends, that's what I'm trying to convey. That again going for one group will be a demerit. Next. मोर रजिस्ट्रेशन फी एट आईसीआई, विटामिन एम पहले ही बोला था, राइट? तो वो तो पता चल ही गया, तो वो भी वैसे सोच लो। आजकल क्या होता है, मेनी अ थिंग्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अनलेस वी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अरे बेटा सिमरन, इफ यू डोंट क्लियर नाउ इन दिस अटेम्प्ट देन व्हाट विल हैपन, यू लूज योर 6 months। आई से दिस टू हर, इफ यू डोंट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट यू लूज 6 months। तो बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। नहीं समझ में आती बात, मम्मी समझाए, नहीं समझ में आ रही, अब चेंज करना पड़ेगा समझाने का तरीका। कैसे चेंज करेंगे? बेटा इसका मतलब तो 6 months पीछे हो जाएगी, एंड इफ यू गो 6 months बिहाइंड दैट मीन्स यू विल बिकम 6 months लेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड ऑन एन एवरेज a CA इज गेटिंग लेट अस से 50,000 पर मंथ। तो 6 महीने का कितना नुकसान हो गया घर पे? 3 लाख। हो मम्मी 3 लाख, 3 lakhs आई एम लूजिंग। अब जल्दी समझ में आता ना, पैसे का मामला है तो जल्दी समझ में आना ही है, ऐसे समझा नहीं समझ में आता। तो इसीलिए वो भी पॉइंट लिखना पड़ा भाई, मोर रजिस्ट्रेशन फी एट आईस। तो जब इतने डीमेरिट्स हैं सिंगल ग्रुप के, तो क्यों ना हम लोग बोथ द ग्रुप्स के लिए ट्राई करें। हमको कॉम्पिटिटिव रहना है यार। इफ वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव देन वी विल बी बिहाइंड, एंड वी कैन नॉट बी बिहाइंड। ओके, सी आई एम गिविंग माई इनपुट्स, you have to take a decision. This seminar is not to change your decision. This seminar is to give inputs to take proper decision. So if you have taken decision and now with my inputs you need to change that, yes you need to change. नहीं भाई, इसके बाद में भी आपको लगता है क्या सही है आपके लिए, आप डिसाइड कीजिए। हमारा काम आपको इनपुट्स देना है, that is what I am trying to give. Okay? चलिए, ये तो मैंने बताया आपको। each subject में कितना, not each subject, each paper में कितना marks? 40 and overall how much? 50%. whether it is first group, whether it is second group. So इसमें minimum 200, उसमें minimum 200 and overall 400. If you write both, then maybe first group 180 also will do, because if second group you get 220, still it is 400, provided each paper you have got 40 marks, then you are clear, right? एक मिनट मैं एक बार थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, then we'll take it up. So this was another aspect which we wanted to cover. Just wait for some time for me to take your doubts. Let me just complete this part which is there, then I will take your doubts. Okay? If you think you will forget the doubt, you can make a note of it. मोबाइल है अपने पास, अगर पेपर पेन नहीं है तो नोट कर सकते हैं, या कुछ पिंच करके रख सकते हैं अपने आप को, याद आ जाएगा कि कुछ डाउट था। ठीक है, आई विल टेक अप थोड़ा सा और आगे। सर अब अप्रोच क्या होना चाहिए और आपका अप्रोच क्या है, क्या करेंगे आप लोग? अभी आपको इतना तो समझ में आया दैट वी विल फोकस ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी चीज पढ़ेंगे वी विल स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन। ओके, सो नॉट जस्ट सब्जेक्ट बट एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लेकिन इसका मतलब क्या हम भूल जाएं एग्जाम लिखना है? Shall we forget that we have to write the exam? Only bother about concepts? No, you know that there's a limitation of time, so we have to focus on examination. तो हम जो लोग यहाँ पर जो बैठे हैं पढ़ाएंगे और जो हैं वो सारा किस पे ध्यान देंगे? Concepts plus examination, a blend of these two, which has to be balanced. Concept भी देखना है और examination भी. Second thing, हम लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ICAI आपको स्टडी मटेरियल देता है ना, वैसे ही हम भी आपको स्टडी मटेरियल देंगे, राइट? स्टूडेंट फ्रेंडली, अपडेटेड, इल्यूसिव स्टडी मटेरियल विल प्रोवाइड। नेक्स्ट थिंग आपके दिमाग में आएगा, सर हम आपको ज्वाइन करेंगे तो डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं? आप मुझे बताइए, करने चाहिए या नहीं, और करेंगे कि नहीं? डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम है किस लिए? उस लिए ही ना, सिर्फ पढ़ा के जाने के लिए नहीं। डाउट्स, अच्छा उससे हमारा फायदा है क्या? कुछ नहीं, क्या? राइट, देखिए
आपको नहीं लगता कि आप ऐसे पॉइंट्स के बारे में सोच सकते हैं विच वी हैव नॉट थॉट ऑफ? Sometimes you may come up with a new scenario which probably we have not thought of, or it is not there in any of the books. So if you are asking a doubt, do you think you are making me think on that, making us think on that? And do you think our level will go up because of that? And if you are helping us to improve our level, we will say no to it. आप हमारा लेवल बढ़ा रहे हो तो हम आपको मना करेंगे क्या? नहीं, करेक्ट है नहीं? नहीं सर, लेकिन क्लास में नहीं पूछना बोलते डाउट. आप मुझे बोला अच्छा, नाउ शुभम को कोई डाउट है. Same thing, do you think Simran also can have? Yes or no? Now, if I say I will not, she can have. उसको भी वो same doubt आ सकता है सर. So अभी दोनों को same doubt है. And if I say that I will not clear doubt in the class, so what does it mean? I'll have to clear 2 times the same doubt. So don't you think again you are helping me here by saving time, because if I allow you to ask doubt in the class itself, class चल रही है उस दौरान अगर मैं आपको बोलूँ डाउट पूछ सकते हो. सिर्फ डिफरेंस क्या हो सकता है? टाइमिंग का. जैसे अभी सर ने बोला एक डाउट है पूछता हूं, मैं बोला रुकिए सर 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट करने के बाद डाउट्स लूंगा. तो वैसे ही क्लास में इफ यू आर हैविंग अ डाउट एंड यू आर आस्किंग अस, विल वी से नो टू इट? नो. पूछो, सिर्फ टाइमिंग, हाँ भाई 2 मिनट रुकिए ये टॉपिक होगा, या आप जो डाउट पूछ रहे हो वो आगे कवर हो जाएगा. सो हैव पेशेंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वे. सो बोलने का मतलब ये है डाउट क्लियर नहीं होगा ऐसा चांस ही नहीं है. ड्यूरिंग द क्लासेस, okay, during the batch and after completion of the batch also. आज टेक्नोलॉजी है ना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, सब कुछ है. और आप अगर आपको लगता है नहीं डाउट ज्यादा है और मिलना है, तो डू यू थिंक विल नॉट बी अवेलेबल? मुझे मेरा नाम करना है नहीं करना है? जो भी नाम है ठीक है, लेकिन और आगे करना है नहीं करना है? करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा डाउट मत पूछ, डाउट के लिए आना मत, ऐसा? No. So it's obvious that we'll be clearing doubts, but still we have written it. So in case you have a doubt that whether we'll be clearing your doubt or not, that doubt gets cleared because of this doubt. नहीं समझ नहीं आया, ठीक, कोई बात. आगे आते. थोड़ा जोक था सर, छोटा सा. नेक्स्ट, मेकिंग लर्निंग अ जॉय. बस यही करना है थोड़ा बीच में. बिकॉज एज I've said, if it is a pain, you study it as a pain. रोज घर से निकलते मम्मी जाना है वापस आज, उसका मुंह देखना है. And just imagine if you have a feeling, yes, come on, we'll go study something new today. इस जोश से आ रहे हो आप. Which one is better? Second one, no? जोश. तो वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताना नहीं पड़ेगा या नहीं? ये प्रैक्टिकली ऐसे यूज होता, ये नहीं होता तो ऐसे होता, वैसे होता. थोड़ा ह्यूमर डालना पड़ेगा कि नहीं? Yes. So that's what is our idea. Making learning a joy instead of pain. Try to make subject as hilarious as possible. But it doesn't mean we believe in education and fun. We believe in education with fun. यानी आप सेपरेटली बोलोगे सर गाना गा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, सुना है आप अच्छा डांस करते हो. डू यू थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म? नो. सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू. हाँ, बट सब्जेक्ट में कुछ ह्यूमर, जोक, राइट, हो सकता है, कंपैरिजन विद डे टू डे लाइफ. डू यू थिंक विल डू इट? यस, वी आर सपोज टू डू एंड वी विल डू. नेक्स्ट, टेस्ट. रेगुलर टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होगा. रेगुलर टेस्ट का मतलब डेली टेस्ट नहीं है, वीकली टेस्ट नहीं है. रेगुलर टेस्ट का मतलब है टॉपिक जैसे जैसे होते जाएंगे. लाइक इन माय सब्जेक्ट आई हैव प्लान्ड लेट्स से 8 टेस्ट. ओके, सो 8 टेस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू अ स्पैन ऑफ टाइम, पीरियोडिकली लेंगे. वैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में, ठीक है. तो वी आर नॉट कमिटिंग 10 नंबर ऑफ टेस्ट, 20 नंबर डेली, वीकली, ऐसा कुछ नहीं. टॉपिक के हिसाब से कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए. और टेस्ट किस लिए लिया जाता है? टू हैरेस यू. यस और नो? हरास करने के लिए टेस्ट लेते हैं? नो. To assess yourself whether you are going right, whether you are understanding things or not, है ना. और फिर उस पर आप क्या कर सके? रेक्टिफिकेशन, राइट, मेजर्स, व्हाट यू नीड टू डू, हाउ टू करेक्ट योरसेल्फ, वो पता चलेगा. तो उसके लिए पीरियोडिकल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट कब होगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस. नाउ सर, विल यू करेक्ट दोस पर्टिकुलर टेस्ट? द आंसर इज नो. वी कैनॉट करेक्ट, वी कैनॉट प्रॉमिस यू समथिंग विच इज फॉल्स. It's not possible for us to correct the test papers, but we'll give you the key of the key meaning what the answers for the questions, and we'll discuss. This was the question which was asked, and this is the answer. What did you write? How it should be written? We'll discuss so that you'll know where you went wrong and correct yourself. We'll say, no sir, other institutes are offering that correction and all. I don't know how they're offering. Maybe their faculties are having that much of time. They're getting it corrected from someone, I don't know. But our point is, if we commit and then get it corrected from someone, it is wrong. Having said this, what about mock test? Mock test we will correct.
the faculties, respective faculties will correct the mock test papers and give it to you, because you should understand how many marks you're getting and what are the things which you're, I mean, what are the mistakes which you're committing. Mock test correct करके देंगे, लेकिन ये जो regular test होगा ये correct नहीं होगा. ठीक है, फाइन. कब होगा टेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है. सर क्लासेस के बाद होगा या संडे होगा, हॉलीडे होगा, क्या होगा, राइट? एंड द आंसर फॉर दैट इज मे बी वीकली ट्वाइस और थ्राइस विल हैव टेस्ट आफ्टर द क्लासेस, नॉट आफ्टर, come on guys, not after the batch. I'm talking about during the batch, during the classes. So after our day to day session which is going on, after that. So अगर classes हमारी 7 से 3 है, 7 to 3, then we'll have the test from where 3:15, 3:20 to 4:15, 4:20, like that. Sir, why not on Sunday? Sunday will not have classes, or holidays will not have classes. If holiday and Sunday are on different days, then we'll give one off. That means weekly one off will be there. And that off, if we call you just for the sake of test 1 hour, don't you think you're wasting your time? इसलिए हमने सोचा है भाई नहीं, डेली जो मंडे टू सैटरडे है उसी में टेस्ट रहेगा आफ्टर द क्लास. सो 2 या 3 दिन ऐसे रखेंगे, हर रोज नहीं. विल ट्राई टू प्लान ऑल्टरनेट डे सो दैट you also get time to revise, study and come and write. Is it clear? Okay, now regular revision will be there. Our approach includes that daily recap. जो पढ़ रहे हैं हम लोग recap करेंगे, right? Whatever yesterday we have read, we'll try to do a recap, revision, multiple revisions in the class. Next, then as you could see, we have the faculties here. We have the non-teaching staff also, which will be supportive. Not just we guys will be supportive, but आपको और भी कुछ help चाहिए नॉन टीचिंग स्टाफ से, वो भी अवेलेबल है. जैसे आप बोलोगे नॉन टीचिंग क्या हेल्प करेगा, सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बुक लाने का, एक बुक चाहिए खरीदना है, टाइम मिल ही नहीं रहा, सो कैन यू आस्क अन्ना टू गेट दैट बुक? यस, विल हेल्प यू विद दैट. सो नॉन टीचिंग स्टाफ कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू एक्सपेक्ट समथिंग रीजनेबल. ठीक है, डेली बोलते हैं नाश्ता लेके आ जाओ, वो नहीं होगा. आई कैन नॉट या प्रोवाइड दैट. बट बाकी सर मेरे को हॉस्टल ढूंढना है, मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. ये सब चीज़ें बिल्कुल यहां पर अवेलेबल होगी. देन कंप्लीट कवरेज, जितना आपका आईसीए का सिलेबस है वो कवर किया जाएगा. एंड देन टाइमली कंप्लीशन इज व्हाट वी वांट, बिकॉज इफ वी वेस्ट टाइम, इफ वी नाउ वुड यू से नॉट टेक प्रॉपरली द क्लासेस, देन एट द एंड यू विल फेस डिफिकल्टी. You need 2.5 to 3 months for your self preparation, without which you cannot be confident to face the examination. So it is very important that we cover the syllabus on time. सर क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बोलोगे भाई सर छुट्टी दे दो, एक सर जल्दी छोड़ दो, सर लेट आओ. हम बोलेंगे ठीक है कर देते हैं. इससे नुकसान किसका होगा? आपका खुद का होगा. तो ये आप सोच लेना. हम कभी मना नहीं करेंगे आप छुट्टी देने के लिए बोलोगे तो, कभी मना नहीं करेंगे आप जल्दी छोड़ने के लिए बोलोगे तो. बट याद रखना, दिस ऑल इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर यू, बिकॉज दैट मीन्स विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम. So for timely completion of syllabus, we need to follow some discipline, and which we will be following. Jokes apart, subject में humor रहेगा, लेकिन at the same time discipline also is must. If you are using your mobile in the class, I will stop you from that. You will say, sir ये क्या तरीका है? तरीका नहीं है, पढ़ना है, अपने को पढ़ना है. ये सब चीजें जो ह्यूमर वगैरह वो एंसिलरी है. आप ह्यूमर के लिए आ रहे हो यहाँ पे, आप मस्ती के लिए आ रहे हो यहाँ पे नहीं, पढ़ने के लिए. लेकिन थोड़ा वो एलिमेंट डालकर लाइवली एनवायरनमेंट बना के पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन डिसिप्लिन को भूलना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट फुल सिलेबस एंड दैट टू ऑन टाइम. मोटिवेशन थ्रू आउट, मीनिंग होता है ना, एक कभी कभी आप ऑफ हो जाते हो, अच्छा नहीं लग रहा है, समवन मोटिवेट्स यू, मे बी 5 minutes, पूरा दिन फिर अच्छा होता है. सो दैट्स व्हाट नाउ यू विल से, सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल फाइंड आउट वेदर मूड ऑफ है या क्या है. वैसा नहीं होता, बट येस ओवरऑल विल ट्राई टू सी टू इट दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू दिस कोर्स. ये सब रॉन्ग र्यूमर्स है, मिथ्स हैं कि सीए डिफिकल्ट है, सीए बेकार है, सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जिनको पता नहीं ये सब ये बात करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ यू वांट टू डू वर्क, इफ यू आर ए डिजर्विंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर इज लॉट ऑफ वर्क. कोई कमी नहीं है मुझे जॉब मिलेगा नहीं, सब मिलेगा. बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है. आप कौन सी फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हो? सिर्फ अकाउंट्स, सिर्फ फाइनेंस? देखा ना आपने सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, कितने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं. ऑडिट, देयर आर मेनी, क्या लॉ. सो प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव, बी पॉजिटिव. दिस इज अ ब्यूटिफुल कोर्स. Consciously, unconsciously, intentionally, unintentionally, if you have joined this, you have done a good thing, because this is giving you a lot of opportunities. There are a lot of opportunities waiting.
हर किसी के। आज सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, आप डिजर्विंग नहीं होते हो तो आपको काम नहीं मिलता है, तो वो तो वैसे भी नहीं मिलता है। आज इतने लाखों डॉक्टर बन रहे हैं, सब डॉक्टर एक जैसा कमा रहे हैं क्या? क्यों? कोई डिजर्विंग नहीं है तो कैसे? वो पढ़ते टाइम पे सिर्फ पढ़ा, रट्टा मारा, तो कैसे उसको काम मिलेगा? सच सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू इफ यू डोंट रीड प्रॉपर्ली एंड यू जस्ट बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन दिस प्रॉब्लम विल कम। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से पढ़ोगे कोई भी चीज, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डिजर्विंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर अप्रोच विल इंक्लूड। नेक्स्ट, then I was talking about roadmap. What is this roadmap? Now we start our batch from Feb 5th. 3rd और 4th आपका रिजल्ट आएगा, 5th को हम लोग शुरू करेंगे बैच। ओके, फर्स्ट ग्रुप इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट। यूल से सर व्हाई फर्स्ट ग्रुप योर फेवरेट? ऐसा नहीं है, फर्स्ट ग्रुप हैज गॉट अ लिंक विद सेकंड ग्रुप। इफ यू स्टडी फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एंड देन गो टू सेकंड ग्रुप, यू विल अंडरस्टैंड सेकंड ग्रुप बेटर। There's a link. When you do accounting and then you do advanced accounting, do you think it will make sense? At least from the name itself you can understand accounting, advanced accounting. पहले क्या पढ़ना चाहिए? Accounting. वही हमको करना है। आपको कंपनी लॉ नहीं आता, आप ऑडिट पढ़ रहे हो, do you think you will be able to understand company audit then? No, my dear friends, please understand. That's where it's important that we start with group 1 first, complete group 1. Okay, so we'll complete group 1 by May 15th, around May 15th, 2 days, 3 days here and there, but this is the completion date for group 1. Then May 16th onwards we'll start with group 2. Try to complete it by July 31st. You'll say, sir, why try to complete? Now, we were supposed to start the batch from Jan 27th, but because of the delay in the results, now we have postponed our batch to Feb 5th. So that's where maybe July 31st, August 5th, August 10th is what you can take it as the maximum days. 5 days to 1 week here and there will be there. Okay, now timings will be from 7 a.m. to 3 p.m. but few students are requesting us, sir, 7 a.m. is very early because mom cannot make my tiffin, so make it 7:30 at least. So we have no issues with that. If you want that, half an hour में ऐसा कुछ इतना पहाड़ नहीं टूटने वाला, तो हम 7:30 से 3:30 कर देंगे। अभी जितने रिक्वेस्ट आए उसमें से आधे रिक्वेस्ट तो यही है कि आधा घंटा एटलीस्ट करिए, तो वो कर लेंगे। अच्छा, क्लासेस के साथ साथ क्या होगा, डेली रिवीजन होगा, थोड़े असाइनमेंट्स होंगे, होमवर्क भी होंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्लास के बाद घर जाके मस्ती कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो। तो हम ये नहीं बोल रहे। और अगर आप प्लान्ड वे में स्टार्टिंग से, इफ यू गो इन अ प्लान्ड वे, डू यू थिंक यू विल हैव टाइम टू डू मस्ती एज वेल एट होम? प्ले दैट क्रिकेट ऑल्सो, स्पोर्ट ऑल्सो, वॉच IPL ऑल्सो? यस, यू विल हैव। See, it's not written anywhere that you cannot watch IPL when you are doing CA. You cannot go for movie if you are doing CA. ऐसा कहीं नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है, लोग स्टार्टिंग में मजे करते हैं, बाद में फंसते हैं, फिर बोलते हैं अरे सीए करते टाइम पे तो ये सब कर ही नहीं सकते। कौन बोला नहीं कर? स्टार्टिंग से यू स्टडी प्रॉपर्ली, प्लान प्रॉपर्ली। 3:30 यहाँ पे क्लास खत्म हुई, 4:30 तक समझो घर पहुंच गए आप, 5 o'clock तक जो भी अपना राइट पेट पूजा था कर लिया, आधा घंटा और ब्रेक ले लिया, 5:30 से 7:30 8:30 तक पढ़ने की आदत डालो, फिर आधा घंटा टीवी देख लो, डिनर कर लो, 10 बजे सो जाओ। ये करना पड़ेगा if you want to clear CA Inter in first attempt. No sir, I haven't done this in CA Foundation. Let me tell you, CA Foundation was different. बेसिक और 11th 12th का काफी सारा उसमें था, अभी वैसा नहीं है। जो 3 साल बीकॉम में आप पढ़ते हो वो अभी आपको 9 महीने में पढ़ना है, वो भी लेवल ऊंचा रख के पढ़ना है। So is it not challenging? See, I'm not trying to scare you by any means. I'm just giving the facts. I'm just sharing the facts before you. So you need to bring that discipline in your day-to-day life so that later it becomes easy for you. रोज रोज बोलते हैं ना, वो आप अगर रोज रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा है जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे हर 6 months में आप एग्जाम लिख रहे हो, वो अच्छा है या एक बार में पूरी मेहनत करके फर्स्ट टाइम में 6 months, फर्स्ट टाइम में पास हो जाना है? फर्स्ट टाइम में पास हो जाना है। दैट इज वेयर दिस रोड मैप। देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर क्या करेंगे आप? रिवीजन करोगे, सेल्फ रिवीजन, और यहां आके मॉक टेस्ट लिखोगे। मॉक टेस्ट कब लिखोगे? अगस्त में ही नहीं, पहले आप एक बार अपना पढ़ लो, एक रीडिंग कर लो, फिर सितंबर में आओ, यहां पे मॉक टेस्ट लिखो। फिर आपके पास 1 more month और होगा, यू विल हैव 1 more month फॉर करेक्टिंग योर सेल्फ, बिकॉज मॉक टेस्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर यू वेंट रॉन्ग, सो अकॉर्डिंगली यू कैन रेक्टिफाई। दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड इट। यू विल से सर ओनली 1 mock test? yes, only 1 mock test for each paper without charging anything. In case you want more mock tests, we can think of it. That is anyways, वो मेरा अभी बोलने से नहीं होगा, आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए आगे, so that we can discuss. If you are really interested, we will conduct, we may conduct, but I don't promise you that now. As of now,
1 mock test we have decided. Sir, okay, November में exam लिख देंगे, then after November exams what will we do? You can go for that 4 weeks of ICIT-SS program with ICI. Plus, we will also conduct some programs here, okay, small workshop here for how to prepare a CV, how to face article shape, which type of firms are there, which type of work a chartered accountant does. Maybe we'll bring our friends from CA fraternity, okay, few famous chartered accountants, few chartered accountants from the industry, and they will throw light at what things you have to do, what type of work you have to do in your practical life, profession. तो you'll understand. वो छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले ये सब का. और उसके बाद फाइनली रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में, एंड यू गेट थ्रू द रिजल्ट्स, देन योर जर्नी फॉर सीए फाइनल बिगिंस. Journey for CA final begins. This is how Feb to January, Feb 2020 to January 2021 is the roadmap which we have drawn. Right. Okay, sir. तो road map समझ में आया, approach समझ में आया, right? Both the groups, benefits, registration, ये सब. सर आप लोग हैं कौन सर? बहुत बात कर रहे हो. Correct. So that's where team Topyog is what I have presented before you. This is the team Topyog for CA Inter. You're for CA Inter, right? So I'm presenting before you CA Inter. Chiranjeev sir, who's here, right, sir? Right. So Chiranjeev sir takes up accounting. He takes up that paper 1 and 5 accounting and advanced accounting. तो जैसे हमारे देवों में गणेश देव फर्स्ट होते हैं ना, प्रथम देव, वैसे प्रथम ये हैं, दोनों ग्रुप में प्रथम ये आने वाले हैं. ठीक है, चिरंजीव सर. He has vast experience teaching accounts. More than 10 years. He teaches at foundation level, inter level and final level too. If you want to know more about him, he has his website. You can just visit his website www.cachiranjeevjain.com. यहाँ पे भी मैंने लिखा है और आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. सर सही में ऐसे ही दिखते थे पहले या कैसे थे, सब आपको पता चलेगा. Then you could see I'm there on the right hand side. I take up corporate and other laws, that is paper number 2. And then I take up even financial management and strategic management in group 2. Paper number 7 का छोटा सा portion, 40 marks का strategic management and 60 marks financial management. Okay, तो ये हो गया 200 marks. That's how I take. Okay. Then even I have an experience of around 10 years, and you want to know more about me, you can visit my website as well, www.cagautamjain.com. Then there is third person on the left hand side. You could see him, Mr. Amit Tated. He is also a chartered accountant plus company secretary as well, and he has done, you could see his qualification, right? कुछ लंबा दिख रहा है, नाम से बड़ा तो qualification है. BCom, ACA, CS, CISA, CISM, DISA, BCCP. फुल फॉर्म भी नहीं पता अपने को, तो ऐसा कुछ पढ़ा है उन्होंने, राइट? मेजरली आपको समझ में आ रहा है तो CACS, इसलिए मैंने CACS बोला. He takes up EIS, that information technology वाला stuff, and audit. So paper number 6 and paper number 7 partially he takes up. He is from Mumbai. He is a very renewed faculty all over India, like Chiranjeev sir, who has taken batches or taken classes at many places like Mumbai he takes anyways, Pune he takes, Nagpur, Indore he has taken, Ahmedabad he has taken, sir also has taken at Kolkata, Bangalore, even by God's grace I have taken at Mumbai, Nagpur. So we've taken classes at multiple cities. So we are the three guys whom you were talking about. Then Ramakant sir, as he's here, stalwart in taxation. He has been taking classes more than around 14 years. He has been practicing and also teaching CA and CS students both, and plus CMA also he takes up. So he is there for taxation, direct taxation he'll be taking for you. That is paper number 4. Then we have Amit Jain sir, who takes up indirect taxes. He is again having experience of around 10 years, 10 plus years. He specializes in indirect taxes, that is GST. So he'll be handling that 40 marks portion for you. Okay, paper number 4, 50? Yeah, 50, sorry, my mistake, 50. Okay, so GST. Then we have Rishabh sir, who takes up costing. As you could see, Rishabh sir here, he takes up costing. He takes up costing for ACCA students also, if you've heard of ACCA. He takes up that. Plus he'll be taking up costing, cost and management accounting, 100 marks, which is paper number 3. 2 तो मेरा यार, ऐसा मत लो यार, ठीक है, 3 उनका 3. So he'll be handling paper number 3, that is cost and management accounting. He's doing his CA as well. He's into his CA final as well, apart from ACCA. Okay, now
As I've told you, apart from the team, now if I talk about the batch schedule, which you might have seen, Feb 5th, again let me repeat, Feb 5th, we have changed the date because of the deferment of the results. Timing, we can make it 7:30 to 3:30 if we get those type of requests. Otherwise, 7 to 3. Then 6 months is the course duration. 6 months when I say, effectively 6 months. 7 to 3 when I say, 7 to 3. Maybe we'll have break in between. Break for, obviously, breakfast and lunch. Half an hour break for each. So 7 to 3, 8 hours. Half an hour break means, 2 half an hour breaks means 1 hour break. So 7 hours is what you will get. So we want effectiveness there. That is why, please understand, our approach will include not one subject per day. Our approach will include 2 subjects or 3 subjects a day. Understand what I said? आपको दिन में एक सब्जेक्ट नहीं होगा, आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? 2 या 3. सर 3 कैसे? 2.5 आवर्स का एक सेशन होगा, ब्रेक होगा, लाइक 7:30 से समझिए 10 o'clock तक एक सेशन होगा. 10 to 10:30 ब्रेक, ब्रेकफास्ट ले लीजिए. 10:30 से 1 o'clock अनदर सेशन 2.5 घंटे का, एंड देन 1 to 1:30 ब्रेक, अगेन कुछ मंच कर सकते हैं, एंड देन 1:30 to 3:30 विल बी अनदर सेशन 2 आवर्स का एक. तो ऐसे करके 2.5 प्लस 2 7 आवर्स का सेशन होगा. 3 सब्जेक्ट्स होंगे. 2 क्यों बोला मैंने? बिकॉज वी हैव सम आउटस्टेशन स्टूडेंट फैकल्टी एज वेल. लाइक आई हैव सेड, मुंबई से अमित सर आते हैं, अमित तातेड़ सर, एंड अमित जैन सर आते हैं पुणे से. सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन, ही इज फ्रॉम पुणे. सो ये 2 जो फैकल्टीज हैं हमारे जो बाहर से आते हैं, तो उनको हम 5 घंटा देंगे, यानी 2 सेशन देंगे. तब, सॉरी प्लीज डोंट यूज मोबाइल, नो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट उस टाइम पे 2 सब्जेक्ट होंगे, 3 नहीं होंगे, बट 2 तो मिनिमम है जो होने वाले हैं. राइट. एंड डू यू थिंक दिस विल ब्रिंग इफेक्टिवनेस? अगर मैं एक सब्जेक्ट लूंगा 7 से 3 तक, इफेक्टिवनेस रहेगा? शायद मैं ही जागता रहूंगा, राइट? बाकी तो सब सोएंगे, तो इफेक्टिवनेस विल नॉट बी देयर. सो दैट्स वेयर आवर अप्रोच इज नॉट अबाउट वन सब्जेक्ट. सेकेंडली, इफ यू अंडरस्टैंड, do you think once you become a chartered accountant, or why once you become a chartered accountant, when you join articleship, you'll be working only on one client? You'll be working only for taxation? हाँ, एक ही काम करो? नहीं ना, अलग अलग टाइप का काम करोगे. एक साथ में आपको 3 क्लाइंट्स, 4 क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ सकते हैं. इसका मतलब यह है, यू शुड बी मल्टी टैलेंटेड, यू शुड नो हाउ टू डू मल्टी टास्किंग. एंड डू यू थिंक यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट नाउ इटसेल्फ? Yes. So do you think this 2 subjects, 3 subjects approach a day will help you to do that? Will help you to develop in that way? Yes. If you are tuned to only one subject per day, one client at a time, okay, will not go to another client unless we finish. You cannot then become a deserving CA, or you cannot actually sustain in life. So that's where our approach includes this as well. Okay? Okay guys? Now the platform is all yours. I have talked what I wanted to, from my understanding, from my experience. Now the platform is yours, so you can start shooting the questions. I said shooting the questions, huh? Come on, you may start with your questions, if any. You want me to repeat something, I can repeat for you. हाँ साहब. तो ले रहे हैं ग्रुप पूरा, दोनों 8 मार्क्स का 8 का ले रहे हैं. करेक्ट साहब. 4 में अगर फेल हो गए तो? 4 में फेल हो गए मतलब? एक ग्रुप में फेल हो गए और एक ग्रुप में पास हो गए. हाँ, तो पास हैं. अगर जैसे एक ग्रुप में सब में फेल है, 4 में, तो फेल ही है वो. तो दूसरे ग्रुप में अगर 200 मार्क्स आ जाते हैं, 200 मार्क्स इन ओवरऑल, एंड ईच पेपर में 40 प्लस है, तो पास हो गए. तो वो ग्रुप वापस से नहीं लिखना है, वो ग्रुप वापस नहीं लिखना है, दूसरा ग्रुप लिखना है. हाँ, 2 ग्रुप अभी पढ़ा रहे हैं. करेक्ट. एक में पास हो गए पूरा कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट फेल हो गए. करेक्ट. नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक ही ग्रुप लिखना रहेगा. जरूर. करेक्ट. आर्टिकल शुरू कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हिज क्वेश्चन. सर इज आस्किंग, if he attempts both the groups, the student attends both the groups and clears only one, doesn't clear the other one, it's okay. That group which he has cleared, he need not write again, but the other group which he has failed, he has to write again. Meanwhile, he can start with his articleship as well. आप बोलोगे सर फिर से कोचिंग लेना क्या उस ग्रुप की? जरूरत है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना. नॉर्मली तो जरूरत नहीं पड़ती. एक बार अगर अच्छे से कोचिंग हो गई तो खुद ही बैठकर पढ़ना है, फिर से रिवीजन करना है. नहीं सर, लेकिन उसको उस टाइम पे डाउट आए तो आप लोग हेल्प करेंगे? बिल्कुल हेल्प करेंगे. वो अब आपका बच्चा नहीं रहेगा, वो हमारा भी बच्चा हो जाएगा. तो हमारे बच्चे को हमको हेल्प करना ही होगा ना सर. तो दैट्स अ सिंपल थिंग कि उस चीज में तो हम असिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे.
नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चन? सर विल यू हेल्प और असिस्ट इन आर्टिकलशिप, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, वैसे आप नहीं पूछ रहे हो। विल यू हेल्प इन आर्टिकलशिप, हम लोग आर्टिकल्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इतनी अगर 10 साल 12 साल 15 साल से सीए हैं हम लोग, तो कुछ तो कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ तो पता है, आइडिया है, तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे ना, कुछ तो हेल्प कर सकते हैं ज्वाइन करने में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपके बच्चे को ये फॉर्म में रखवा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं उसका सीवी फॉरवर्ड करवा सकता हूं, उसको गाइड कर सकता हूं, वहां कैसे इंटरव्यू फेस करना है, उसके बाद उसको परफॉर्म करना है। अगर वो परफॉर्म करता है तो देन डेफिनेटली ही कैन बी रिक्रूटेड देयर, वो लोग उनको उसको ले सकते हैं। तो राह दिखा सकता हूं, बता सकता हूं पानी कहां पर है, जाके उसको पीना है। तो दैट वे विल, या रेफरेंस हम लोग दे देंगे कि रेफरेंस है, उसको भी पूछा रेफरेंस दो, एक रेफरेंस दो, तो हमारा नाम दे सकता है। दिस वे वी कैन डेफिनेटली हेल्प। और एक जैसा मैं बच्चे को भिजा रहा हूँ, यस, भी आप जैसा बोले कि जब चाहे हम छुट्टी दे देंगे, मैं जब चाहे छुट्टी नहीं बोला कभी। ऐसा बोलेंगे कि हमको आज नहीं पढ़ना है या हमको कुछ काम है। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे बोला समझाने के लिए बेटा, कि अगर आप जब बोलोगे छुट्टी दे दोगे, मैं बोलूंगा ठीक है ले लो, हाँ, लेकिन उससे नुकसान आपका होगा, ये समझाने के। इसका मतलब ये नहीं मैं छुट्टी दूंगा। आप बोले बरोबर है, मगर मैं जैसे चाह रहा हूँ, अब मैं भिजा रहा हूँ और बच्चा मिसयूज करे उसका, तो मेरे को कैसे मालूम? हाँ, सी, वन डे इफ अ स्टूडेंट इज एब्सेंट, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं सर कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड डे अगर बच्चा एब्सेंट है, हम आपको मैसेज करें, क्योंकि एक दिन तो कोई भी हो सकता है, कभी बीमार हो गया, कुछ हो गया, आपके घर में कुछ काम है, आपने नहीं बोला, त्योहार है वगैरह, एक दिन का कुछ नहीं। दूसरे दिन जब नहीं आया तो आपको मैसेज जाएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा तो कॉल करेंगे, यानी हम अटेंडेंस रोज लेंगे। आप भी बीच में आ सकते हो। एक और चीज़ है, आप बोलोगे मैं आके आपसे बात कर सकता हूं क्या, बीच में कभी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर, वो हम एंटरटेन नहीं, हम मतलब रिस्पेक्टफुली आपको अलाउ, मतलब आने के लिए बोलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उसी से तो आपका इंटरेक्शन बनेगा, हमको भी पता चलेगा वो कर क्या रहे। तो डेफिनेटली अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग सॉर्ट ऑफ यहाँ पर है, वैसा होता नहीं है। लेकिन जब जब आपको ज़रूरत है आप बिल्कुल आ सकते हैं। जनवरी में कैसा था, इमीडिएट बच्चा नहीं आया तो जैसा 10 बजे चालू होती, 10:15 को मैसेज आया था कि आपका बच्चा कॉलेज में। बिल्कुल, वी ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हम लोग उतना तो नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ, लेकिन एक दिन का माफ़ी है, मतलब एक दिन तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बच्चे भी हैं, प्रोफेशनल है, वो सेंट मेरीज कॉलेज है, ये बच्चा अब सीए फाउंडेशन हो सकता है ज़बरदस्ती में किया हो, आपने फोर्स किया हो, किया, लेकिन अब इंटर अगर करेगा तो अपने मन से करेगा, और हम लोग उसको मोटिवेट करते रहेंगे, हमारा काम ही वही है, इसलिए मैंने लिखा उसमें। और मोटिवेट, झूठा मोटिवेट नहीं, जो सच है वो बता रहे हैं, और मोटिवेट होकर वो खुद आएगा, और उसको नहीं करना होगा तो वो आपको आके बोल देगा। तो इसीलिए फर्स्ट डे तो कुछ नहीं, सेकेंड डे मैसेज, थर्ड डे कॉल, और अटेंडेंस हम मेंटेन करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कवर करना भूल गया, आप पूछेंगे सर फीडबैक लेंगे क्या आप? बहुत जगह देखा है फीडबैक लेते हैं, है ना, फीडबैक लेते हैं कि नहीं? किस लिए लेते हैं? प्रॉब्लम समझने के लिए, इंप्रूव होने के लिए, करेक्ट। तो हम फीडबैक लेंगे क्या? लेंगे। कैसी लेने चाहिए फीडबैक? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा फीडबैक लिख के देते हैं, उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या कुछ इस पे काम नहीं होता है कि नहीं ऐसे? यू माइट हैव नोटिस, नो फाउंडेशन ऑल्सो यू माइट हैव गिवन फीडबैक एंड डिड एनीथिंग हैपन? सर नो सर, नथिंग हैपेंड। सो व्हेन यू ऑल्सो टेक फीडबैक, नथिंग विल हैपन, करेक्ट? नो, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट सीरियसली। तो सर कैसे करेंगे, कैसा भरोसा करें? तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि एवरी मंथ वी विल कॉल मदर, वन मदर, ओके, मदर ऑफ वन स्टूडेंट, दैट मीन्स जो आके आपसे इंटरेक्ट करेंगे। समझिए अब अनुराग के मम्मी आ गए, यहाँ पे आप लोग बैठे हो, स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑब्वियसली क्लास में तो स्टूडेंट्स होंगे, अभी तो पेरेंट्स भी आए हैं, लेकिन तब स्टूडेंट्स होंगे। तो अनुराग के जो मम्मी हैं, आंटी जो हैं, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, हम लोग नहीं होंगे उस टाइम पे जब वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं होगा, रूम बंद करेंगे, आप इंटरेक्ट कीजिए, आपको जो कंसर्न है आप शेयर करिए, किससे? आंटी से। फिर आंटी का क्या काम होगा? हमसे आके मिले और बताए बच्चों को ये प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है हमको एड्रेस करना पड़ेगा? बोलिए, करना ही पड़ेगा ना, पेरेंट्स बोल रहे हैं, आप बोल रहे तो आपको घुमा देंगे, है ना? इधर घुमा सकते क्या? नहीं घुमा सकते, वो दुनिया हमसे ज्यादा देखे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी थॉट, वी विल नॉट हैव द रिटर्न सिस्टम, डब्बा लगा दिया, उस पर कुछ होता नहीं है, या हम में भी शायद वो नहीं आए। हमको भी अगर सीरियस रहना है, एक्सेल करना है, सी आप बोलेंगे ऐसा सब क्यों, इंप्रूव करना है यार। नहीं सर आप तो बेस्ट हो, हमने सुना है, बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट इज येट टू कम, वी हैव टू एक्सेल एवरी डे। जहां हमने सोच लिया हम बेस्ट है, जहां आपने सोच लिया आप बेस्ट है,
वहीं ख़त्म हो गई अपनी ग्रोथ। तो वो हमको नहीं करना है, इसीलिए सीरियसली उस चीज़ को लेना है, समझना है। और देखिए 100% चीज़ें नहीं होती, कोई भी बेस्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो रहता है। बट एक इंटेंशन होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम उसको कर सके, रेक्टिफाई कर सके, करेक्ट सके, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो दिखाएं। वो नहीं हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन मेहनत ही नहीं कर रहे, अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग, नो। So our idea is to take feedback properly, take it in the right way, constructively, use it and execute it. तो ये एक फीडबैक सिस्टम का मुझे बताना था कि हम लोग ऐसे करेंगे, तो उस टाइम पे आपको आना पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो कोई और अच्छा फाइंड आउट कैसे करेंगे कि अनुराग की मम्मी आएगी, नेक्स्ट टाइम सिमरन की मम्मी आएंगी या सिमरन के पापा आएंगे? हाउ विल वी डिसाइड? चिट्ठी निकाल के, करेक्ट। चिट्ठी कौन निकालेगा? अच्छा चलो, चिट्ठी कौन निकालेगा? आप में से कोई निकाल सकता है, उसमें कोई बिग डील नहीं। या खुद ही वॉलंटियर कर दिया, जैसे अनुराग की मम्मी ने बोल दिया फर्स्ट टाइम मेरे को बुलाना सर, मैं आऊंगी, ठीक है, मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट। हाँ लेकिन 6 के 6 बार, 6 महीने बैच चला, 6 महीने ये नहीं आएंगी, 1 महीना 1 बार। क्यों? आंटी को साड़ी देंगे ना हम लोग, है कि नहीं? पॉइंट इज जो लाइटर साइड में बोला, लेकिन आप समझे तो वो एक डेवलप हो जाता है रिलेशनशिप, वैसे नहीं चाहिए हमको, इंडिपेंडेंट चाहिए। आप पढ़ोगे ऑडिट में, इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ को सही तरह से रिव्यू करने के लिए। तो इसीलिए 1 बार 1 का चांस। और स्टूडेंट्स को भी लगे अरे यही आंटी आते यार कुछ नहीं करते, आंटी से कुछ नहीं होता, तो ये नहीं चाहिए हमें, दैट्स वेयर। और आंटी इसलिए बोला, मदर इसलिए बोला कि मदर जनरली अवेलेबल होती हैं, फादर शायद बिजी हो, नहीं हो, या फिर उतना रैपो नहीं रखे, या आप लोग जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं कंफर्टेबल नहीं हो, आंटी से जल्दी कंफर्टेबल होते हैं, अंकल से थोड़ा टाइम लगता है, अपने पापा से शायद कंफर्टेबल नहीं रहते, या रहते हो जो भी है, लेकिन सामने वाले से थोड़ा टाइम लग जाता है, अंकल अगर हो तो दैट्स वेयर, या दैट्स व्हाट सर। तो इसलिए मम्मी विल अंडरस्टैंड बेटर। हाँ हाँ गुड, एक्चुअली ऋषभ सर विल आई मीन ब्रीफ यू अबाउट दैट, कि आप जब मिस कर रहे हो क्लासेस, तो हमने लिखा है ना वीडियो बैकअप, आपने पढ़ा भी होगा, तो ये एग्जैक्टली वीडियो बैकअप का क्या मतलब है? आई जस्ट मिस्ड इट आउट। आप अगर देखें, इफ स्टूडेंट मिसेस द क्लास देन विल प्रोवाइड वीडियो बैकअप। या ऋषभ, यहाँ पे क्या होता, क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड एवरी डे। अपना अगर समझिए 7:30 से का क्लास है, द रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट एट 3:30 एंड द रिकॉर्डिंग फॉर एवरी क्लास अप टू 3:30। 7:30 से शुरू होगा 3:30। 7:30। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो पूरा अपलोड नहीं कर सकते, जैसे अभी भी अपना ये जो सेशन हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये पूरा अपलोड नहीं कर सकते, इसमें कुछ रहता जो हमको एडिट करना पड़ता, और ये रॉ फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब तो उतना डेटा हम अपलोड नहीं कर सकते, तो कंप्रेस द फाइल, छोटा बना, बोलने का मतलब है थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है, तो हम वी आर थिंकिंग दैट वी विल बी एबल टू डू इट इन 24 आवर्स, वी विल ट्राई डू इट इन 24 आवर्स, सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे मैक्सिमम वी विल बी एबल टू हैव दैट वीडियो रेडी। पर आज आपका क्लास 3:30 हुआ, हम दूसरे दिन उस पर काम करके उसको कंप्रेस करके अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव, पे अपलोड करेंगे, और लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। सब स्टूडेंट्स के साथ वो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर हो जाएगा, एंड एवरीबॉडी विल बी गिवन अ की, तब वो एन्क्रिप्टेड रहेगा। एन्क्रिप्शन इसलिए ताकि कॉपी ना हो, पायरेसी इश्यूज ना, ताला लगा देते हैं भाई, और चाबी आपको देंगे, चाबी का मतलब क्या है? कोड। by that code you will be able to access, अभी we are thinking classes, तब आपको एक की दे देंगे, वो की से आप 15 क्लास देख सकते हो, कोई भी 15 क्लास, तो पूरे 6 महीने के कोर्स में any 15 क्लासेस you can watch again। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन छुट्टी ले लो, हाँ ऐसा भी नहीं, ये तो कैसे बिन बीमार पड़ गए, 2 दिन नहीं आ सके, 5 दिन नहीं आ सके, तो चलो वो आपका जो लिंक है वो नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए वो दिन का सेशन आप घर पे बैठ के देख लो, उस दिन नहीं हो सकता नेक्स्ट डे तो हो जाएगा। तो सपोजिंग यू मिस टुडे, तो आपको कल आना है, कल का क्लास समझना है, और फिर कल घर जाने के बाद में आप आज का क्लास देख सकते हो, तो यू हैव टू स्पेंड ट्वाइस द टाइम द अदर डे। हाँ तो ये भी सोच लो, क्योंकि आपको 7 घंटे दूसरे दिन इधर भी आना है, घर जाके फिर 7 घंटे का क्लास पिछले दिन वाला भी देखना, बैकलॉग इतना रहेगा ना। सो डोंट थिंक ऑफ मिसिंग क्लासेस, बट जेन्युइनली कुछ हो गया, बीमार हो गए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उस केस में एटलीस्ट दिस विल बी हेल्पफुल।
संडे एक ही दिन आपके पास भी रहेगा। हाँ संडे, इसीलिए भी एक और रीज़न है, संडे आप रिवाइज करो, रिफ्रेश करो। You can watch it on Sunday or any other holiday, but it is recommended that you should not be missing any class. ठीक है, और या ऐसा हो सकता है आप बराबर आए, कोई दिन आपने मिस नहीं किया, आपका बैच कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आपको ऐसे लगता है फिर से मेरे को क्लास जाना है, क्लास देखना है, देख लीजिए, यूज कर लीजिए, वैसे भी बेनिफिशियल हो सकता है। यानी अभी अगर आपने सेव किया ये, तो आगे जाकर जो क्लास आपको वापस देखनी है आप देख सकते हो। विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस इफ इट इज रीजनेबल। यानी ये 15-20 क्लासेस तक का ठीक है, 15 क्लासेस तक का ठीक है, हम चार्ज कुछ नहीं करेंगे, फी में इंक्लूड रहेगा। लेकिन अगर ये बढ़ता है, स्टूडेंट तो नॉर्मली नहीं आ रहा है, तो फिर हम चार्ज करेंगे उसके लिए। हाँ बिल्कुल सर, 15 दिन का फैसिलिटी हम दे रहे हैं, लेकिन अगर वो मिसयूज हो रहा है, भाई वो जब चाहे तब नहीं आ रहा है, बोल रहा है मैं वीडियो देख लूंगा, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, तो उसके लिए फिर हम चार्ज करेंगे ताकि वो डिस्करेज। स्टूडेंट्स जनरली नहीं आएंगे, पूरा घर पे देख लेंगे, बाहर देख लेंगे, वी डोंट वांट टू एनकरेज दैट। सिर्फ इमरजेंसी के लिए, कभी बीकॉम कॉलेज में कुछ आ गया, हाँ वैसा भी आ गया, बिल्कुल नहीं नहीं आ सके, कुछ ऐसे भी हो। असेसमेंट है कॉलेज में या एग्जाम है, तो फॉर ऑल दोस रीजंस वी आर गिविंग 15 डेज। ठीक है, थैंक यू ऋषि। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर हम लोग बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम कॉलेज के साथ कैसे हम लोग कोचिंग अटेंड करेंगे, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब बहुत लोगों के दिमाग में। अब आप मुझे बताओ, आपको ग्रेजुएट बनना है या सीए बनना है? सर मुझे ग्रेजुएट भी बनना है, मुझे सीए भी बनना है। आई थिंक दैट शुड हैव बीन योर आंसर, यू वांट टू बिकम ग्रेजुएट प्लस सीए। बट इफ आई नाउ आस्क यू व्हाट इज योर प्रायोरिटी, CA is your priority. So you will decide about graduation on the basis of CA or CA on the basis of graduation. किसके बेसिस पे डिसीजन लोगे, CA के बेसिस पे ग्रेजुएशन का डिसीजन या ग्रेजुएशन के बेसिस पे CA का? अरे मेरा कॉलेज 7 से 3 है, मैं तो कॉलेज जाऊंगा, बाद में देखूंगा कहां पे क्लास अटेंड करना। ठीक है भाई तेरी मर्जी, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा, फिर CA पीछे रह जाएगा। So it's not advisable to take decisions on the basis of graduation for CA. तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको एक लेटर दे, मैं इन द सेंस टॉपिक आपको कुछ नहीं कर सकता है, टॉपिक आपको लेटर दे देगा, आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हो कि आप टॉपिक के स्टूडेंट हो, सीए इंटर की कोचिंग चल रही है, इतना इतना टाइम पे अटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता है नहीं ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, देन यू हैव टू टेक डिसीजन, यू हैव टू सेलेक्ट। अब बोलोगे अरे सर ये तो बाद में लेट पता चला, ये तो आपको पहले जब आपने सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया या जब सोचा, आपको सोचना था, बीकॉम उस हिसाब से ही ज्वाइन करना था। क्योंकि आज मैं क्या कर सकता हूं, आप बीच में हो अभी, राइट, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं सीए पे फोकस करो, सीए हो गया तो बीकॉम का कोई वैल्यू नहीं है, बोलना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन क्या मिलता है बीकॉम करने पे, ग्रेजुएशन करने पे, बताइए मुझे? हार्डली शादी, करेक्ट। क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? दुकान में बैठने मिलेगा, शादी हो जाएगी, वो भी अगर वो सामने वाली फैमिली भी बिजनेस फैमिली है और मान लो उनको उतना एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो काइंडली अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो इसीलिए आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को सीए करना है या बीकॉम करना है। सीए करना है तो भाई सीए का फॉलो करके जो टाइम मिल रहा है उधर जाओ। इसीलिए अगर आपने अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी कॉलेज, ज्वाइन नियर बाय कॉलेज और गो फॉर ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन ले लो, बीकॉम कहीं से भी करो, क्या फर्क पड़ता है? आपने पूछा मैंने बीकॉम कहां से किया? पूछा भी नहीं। शायद आप सीए से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछोगे मुझे बाद में, या हो सकता है अभी, बट हु इज गोइंग टू आस्क मी फॉर बीकॉम? नो वन इज गोइंग टू आस्क मी। में जा रहा है हाँ कॉलेज, बिल्कुल, के लिए फर्स्ट एग्जाम दे दिया, अब 1 साल तो ये सीए का जाएगा ही जाएगा, इधर ही आएगा, उसको आगे का कैसा करना? वही मैं बोल रहा हूँ, उसको कन्विंस करना पड़ेगा वहां पर कि मेरे लिए प्रायोरिटी वो है और मैं नहीं अटेंड कर सकता हूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए। हम कुछ रास्ता नहीं दिखा सकते हैं सर, वो लोग ही रास्ता दिखा सकते हैं, हम सिर्फ यहां पे पढ़ा सकते हैं सीए इंटर का। छोड़ देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ने के लिए, वो लोग बताएंगे। मैं सजेस्ट कर रहा हूं एक ऑल्टरनेटिव, अगर बीकॉम ज्वाइन नहीं किया है कहीं कॉलेज में तो उनके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव बताया, जो ज्वाइन कर सके उसको मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव, जो नहीं किया, जैसे मैथिली हु सिटिंग हियर हैज नॉट जॉइंड एनी कॉलेज टिल नाउ, so I will strongly recommend her to take up distance education or join a nearby college so that it is very easy। जैसे अभी इन मैडम को बोला, सिमरन को, उनका कॉलेज सामने ही है, तो मैं बोला जब भी आपको ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट जाओ ठप्पा लगा दो और आ जाओ, 5 मिनट लगेंगे जाके आने, और जब वापस लॉग आउट का टाइम होता है तब फिर से जाओ, ठप्पा लगा दो, आ जाओ, ऐसा कर लो। सॉरी, वही वो बात कर सकते, देंगे वो परमिशन।
वही सर मैं बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ में नहीं आ सकता हूँ। नहीं, वहाँ अटेंडेंस नहीं रहा तो पेनल्टी पे है, बात किया है। वही सर, मैं खुद भद्रोका में पढ़ा हूँ आपकी जानकारी के लिए, लेकिन वो था 2002 बैच पास आउट हूँ मैं, 99 से 2002, उसके बाद और अभी में सिस्टम्स चेंज हो गए हैं और हम झूठे वादे आपसे नहीं कर सकते हम हैंडल कर लेंगे, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी हैंडल नहीं कर सकते, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, तो आपको उनसे ही ज़्यादा मतलब सजेशन अच्छा मिलेगा कि क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं, आप डिसाइड करिए प्रायोरिटी, योर प्रायोरिटी सीए और बीकॉम। सीए, हम सीए में आपको हेल्प कर सकते हैं, बीकॉम में हम हेल्प नहीं कर सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं ये कॉलेज ज्वाइन कर लो, डिस्टेंस एजुकेशन, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आज कुछ बोलूँगा और वो होगा नहीं, आप आके मेरे, तो ये इसीलिए नहीं भाई, कुछ फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं। अर्ली बर्ड, यही है अर्ली बर्ड, ये अर्ली बर्ड है जो आपके सामने दिख रहा है। 60,000 इज आवर फी फॉर बोथ द ग्रुप्स, आपको ही पता है, आपने फाइंड आउट किया होगा, दूसरी जगह पे भी इसके आसपास ही है 60,000 के आसपास, बट बिकॉज टॉपयोग इज अ न्यू एकेडमी फॉर यू गाइज, no doubt when I talk about the team, all are experienced, but the academy as such is new, so we are giving a discount straight away of 20%, क्योंकि किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 20% नहीं, सबको इनॉग्रल बेनिफिट मिल रहा है, फर्स्ट बैच है करके, एक एक ग्रुप लेते हो तो भी 20-20% ऑफ है, आप देख सकते हो, यही है अर्ली बर्ड, इसके अलावा कोई अर्ली बर्ड या कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक सर, अगर बाई चांस आप चाहते हो कि भाई फाइनेंशियली थोड़ा सा हम लोग मतलब नहीं एफोर्ड कर सकते उतना, तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज में दे सकता हूँ, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल, फर्दर वी कैन टॉक अबाउट इट। हाँ सर, आप क्लास लेते हैं, हाँ इट शुड नॉट बी वन से क्लास, अब मेरा सजेशन है, सजेशन अब होने वाले जैसे एक क्लास हो गया, एक सेशन हो गया, उसके 10 मिनट स्टूडेंट्स का उसने क्या स्टडी किया है उन्होंने, उसका कोई प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सर। एक चीज, बच्चा क्लास में अटेंडेंस था या नहीं था, और वो दे एक बीइंग ए लिमिटेड क्लासेस है, लिमिटेड स्टूडेंट को लास्ट सजेशन भी यार सब पेन ये नहीं बता सकता, फिर बात समझ आप भी प्रति को समझ सकते हो, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चों को बोलने की भी नहीं पहली बात सर, वो तो क्लास के इंटरेक्शन, अभी आप देख रहे होंगे, ये सेमिनार बोला मैंने, लेकिन मैंने आपको थोड़ा इन्वॉल्व किया कि नहीं, पूछा कि नहीं बीच में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन, ये तो बहुत कम है, क्योंकि ये सेमिनार है और यहाँ पे आप लोग पेरेंट्स भी बैठे हो, जब सिर्फ ये लोग होंगे मेरे हाथ में, तब तो मैं राजा हूँ। उसका मतलब ये है कि मेरे को एक चीज़ मैंने समझाई, मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जब तक मुझे नहीं लगता, वो कंफर्ट नहीं आता कि इनके दिमाग, इनका फेस पे वो चमक नहीं आ रही, समझ नहीं रहा, तो बताना ही है, वो तो इन्वॉल्व है। और सर ने जैसे बोला, एक एक्सपीरियंस के साथ आइडिया आ गया है, अभी इसको समझ रहा है नहीं समझ रहा, हमको पता चलता है। और कई बार क्या होता है, इनको लगता है इनको समझ गया, लेकिन नहीं समझा, वो भी हमको पता है, वहीं पर एक्सपीरियंस का मतलब वही है। तो वो वेल टेकन, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और हम लोग ऑलरेडी उस पर काम, मतलब वो इंक्लूडेड होता है, और जहां नहीं है तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज को। बिल्कुल सर, हाँ बोलिए ना मैम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन एंड टेक इट होम and then take a decision, it will be a wrong decision taken, or it may be proved to be a wrong decision taken. एक बात सर, अभी 5 तारीख को 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, और अभी हम लोग आ चुके हैं, उसके पहले शिफ्ट फुल हो गई है, हमें आने में आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया, ये 4 रिजल्ट आया, हम लोग 5 को भी क्लासेस चालू होने वाले हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन को ले ले रहा, उस बीच में अगर क्लास फुल हो गई तो हम लोगों को फिर चांसेस मिलेगा इसमें ऐसा, जैसे आपके लिए 46 करेक्ट। सी, हमारे क्लास की कैपेसिटी 40 है वैसे तो, अभी देख रहे हो आप लोग, ये किस लिए 40 रखा है सबको समझता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन सबको समझता है कि भाई जब नई एकेडमी, भले एक्सपीरियंस फैकल्टीज आई है, नई एकेडमी तो हो सकता है टाइम लगे आने में, तो अननेसेसरली वी वुड ऑल्सो नॉट इन्वेस्ट, राइट। लेकिन अगर बाय गॉड्स ग्रेस आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा और अच्छी स्ट्रेंथ रही, तो वी ऑलरेडी स्पोकन टू सम कॉलेज वेयर वी हैव क्लासरूम ऑफ मोर कैपेसिटी। सो इन हिमायत नगर, अगेन कहीं और नहीं, बरकतपुरा या फिर मैं मतलब क्या बोलते हैं अपना अमीरपेट बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं बात कर रहा हूँ हिमायत नगर की, वहीं पर हम लोगों ने 2-3 कॉलेज से ऑलरेडी बात करके रखी है, एक तो पक्का भी हो चुका है, उन्होंने हाँ बोल दिया अपनी तरफ से, सो विल हैव दैट, ओके। तो उस केस में दिक्कत नहीं है, जब मालूम है अच्छा स्ट्रेंथ आ रहा है, तब तो फिर वहाँ शिफ्ट होना ही है और फिर कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो 40 स्टूडेंट्स को हमने एनरोलमेंट एडमिशन दे दिया और अब 41st स्टूडेंट आया, आप लोग भी समझ सकते हैं, यू आर वेल, आई मीन व्हाट इज से नॉलेजेबल पीपल, या एटलीस्ट उतना तो समझता है सबको कि 41st स्टूडेंट के लिए कैन वी चेंज द प्लेस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, फाइनेंशियली इट्स नॉट फीजिबल, अदरवाइज ऑल्सो इट्स नॉट फीजिबल।
हाँ, लेकिन 40 के बाद पता चला एकदम से हमारे पास 30 और है, 50 और है, समझिए ऐसा अगर कुछ आ रहा है तो पार्टी तो करेंगे बट डेफिनेटली प्लेस भी शिफ्ट करेंगे। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सकता है डिसीजन ले। देखिए आज आप बोलेंगे सेमिनार क्यों चेंज नहीं किया, डेट बैच का डेट चेंज किया, 27 जनवरी की जगह Feb 5 किया, सेमिनार का डेट तो वही रखा आपने। अगर फॉलो किया है हमें स्टार्टिंग से 19 जैन का 19 जैन, क्यों? हम चाहते हैं आज आप डिसीजन लो, आज नहीं लो तो कम से कम रिजल्ट आने तक डिसाइड करके रखो जहां पे भी आपको ज्वाइन करना है। मैं ये नहीं बोल रहा यहीं ज्वाइन करना है, इट्स योर विश। आई हैव जस्ट गिवन यू द आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच। नाउ यू गो थ्रू और यू फाइंड आउट फ्रॉम अदर प्लेसेस, ओके, एंड जस्ट गेट अ कंफर्मेशन, जस्ट डिसाइड वेयर यू वांट टू ज्वाइन। और जैसे ही रिजल्ट आया, पास हो गए, वहां ज्वाइन कर लो। तो इसीलिए Feb 5 रखा है डेट। अब आप बोलोगे Feb 5 हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं, मैं तो इनपुट, मैं आप जितने क्वेश्चन है पूछिए मैं आंसर कर दूंगा। डिसीजन तो आपको ही लेना है और मेरे हिसाब से लेना है रिजल्ट आने के पहले। तो रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। अब आप बोलेंगे दूसरी जगह ऑलरेडी बैच शुरू हो रहा है, अगेन आई कैन नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स। मैं जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं वो बात नहीं कर सकता। इसलिए हमने सोचा जैन 27 को हम भी कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं पीछे, लेकिन हमने बच्चों का सोचा कि उनका मिस जो होगा, जो लोग डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे, रिजल्ट आने पे लेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने डेट बोला चलो Feb 10 तो नहीं रख सकते, Feb 5 अपन रख देते हैं। सॉरी, हाँ बुकिंग तो होगी सर, बट अभी हम फी कुछ कलेक्ट नहीं करेंगे। फी कलेक्ट करेंगे जब रिजल्ट्स आ जाएंगे और पास हो जाएगा बच्चा। जैसा कि मैं मेरे लड़के का नाम लिखा दिया वहाँ पर, हाँ, XYZ मेरा बच्चा को नहीं इधर कराना है, तो फिर आप नहीं मैं समझा नहीं। पहले पैसे देना पड़ेगा। हाँ सर, वो अभी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप नाम लिखा दीजिए, हम इंटरेस्टेड हैं। रिजल्ट आया, पास हो गया, समझे Feb 3 को रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपने बोल दिया मेरा कंफर्म्ड है, बोलने से नहीं होगा। उस टाइम पे हम बोलेंगे सर आके आप जो फी, रजिस्ट्रेशन फी है वो आप पे कीजिए। हाँ, तो उस टाइम पे रिजल्ट आने के बाद फी पे करना है। तो फी पे हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका मतलब आपकी सीट बुक हो गई। अब आपने नाम लिखा दिया, खुदा ना खास्ता अगर वो पास नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कोई फी ली नहीं, आपने दी नहीं, तो लेना देना कुछ है नहीं, सिंपल रखा है। वो सब नहीं, इसलिए भी क्लासेस भी शुरू नहीं कर रहे हैं, Feb 5 को क्लास शुरू कर रहे हैं, सो दैट यू डोंट हैव अ कंफ्यूजन। और आज आप बुक करवाते तो पहला प्रेफरेंस आपको है, यानी आप मान लो अपने नाम लिखवा दिया, रिजल्ट आया, पास हो गया, और कुछ बच्चे और आ गए, लेकिन हम पहले आपको कॉल करेंगे कि हम एडमिशन देना शुरू कर रहे हैं, आप आ रहे हो तो आपके लिए रखते हैं, वो भी एक, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप आइए रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फी एटलीस्ट पे कर दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे को सीट दूंगा। आपको इन्फॉर्म करने के बाद करेंगे, पहला प्रेफरेंस आपका, क्योंकि आपने नाम लिखवाया था। क्या है कि जितना लेट करेंगे ना सर, आगे जाकर उतनी मुश्किल होगी, फिर या तो संडेज कट करने पड़ेंगे, और देख ही सकते सब मैरिड दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा भी डिवोर्स हो जाएगा। सो देयर आर मेनी थिंग्स, बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, बैकअप अगर चाहिए तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए हमने रखा नहीं, एक दिन सबको चाहिए छुट्टी का, तो एक दिन छुट्टी चाहिए, वो सब कट करना पड़ेगा अगर हम और डिले करेंगे, इसलिए सोचा नहीं Feb 5 इज, तो डिसीजन लेके रखिए, तुरंत रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करिए। और एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब क्या है, बट फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड। सी देयर विल बी अनदर बैच विल बी स्टार्टिंग, और एक रेगुलर बैच होगा, राइट? तो डेफिनेटली हमारे पास उतना टाइम तो नहीं है कि हम अलग से फिर से आपको पढ़ाएं, और हम फर्स्ट टाइम पढ़ाते टाइम पे ही ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का कि हमको अच्छे से ही पढ़ाना है, ताकि आपको सेकेंड टाइम जरूरत ना पड़े। आपको हो सकता है डाउट हो, डाउट हम लोग क्लियर करेंगे, मैंने वही बोला। बैच खत्म होने के बाद में भी व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जिस पे आप डाउट पूछ सकते हो, या ज़्यादा डाउट है, कभी मिलना है, आके टाइम ले लिया कि सर आना चाहता हूँ, टाइम म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, आके डाउट पूछ लो। दूसरी बार पढ़ाने की तो देखिए, अगर मैं आज बोल भी दूँ ना, मैं 2 बार नहीं 3 बार आके पढ़ ले तो आप आओगे नहीं, ये फैक्ट है। कोई नहीं आता दूसरी बार, जो सीए करता हो तो उसके पास वैसे ही टाइम नहीं होता, और एक बार अगर अच्छे से क्लास हुई तो दूसरी बार की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। खुद रिवीजन करना है, मालूम करना है, प्रैक्टिस करना है, मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, और आगे बढ़ना है, और उसके लिए हम साथ देंगे आपका।
अभी तो कोई नहीं दे रहे हैं. This is what why we are giving, not to promote ourselves, to help students. As per our experience, जो हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि इंटर के स्टूडेंट है 10 दिन का क्लास मिस हो जाता है. So you are absent due to some unusual circumstances, marriage है, of course नहीं आ सकते. आपका नहीं, हाँ भैया भाभी का. आपको मना नहीं कर सकते, और ऑफकोर्स आपको वहां पर रहना जरूरी है. मैं आपको कितना ही बोल दूं आप नहीं आओगे, तो हो सकता है 10 डेज का क्लास मिल गया, लेकिन 10 डेज के बाद क्या आप यहाँ हो गए, आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ आएगा. ये हमारा एक्सपीरियंस है. तो आपको लिंक टूटता है ना, तो एक तो समझ नहीं आता, फिर इंटरेस्ट टूट जाता है, इंटरेस्ट टूट गया, डिमोटिवेट, एंड देन यू लीव द कोर्स ओनली. जो हम आपको 15 डेज का फी दे रहे हैं, दैट इज नॉट आल्सो कॉस्टली अफेयर फॉर. बट हमने सोचा नहीं, ये बेनिफिट होगा. बेनिफिट क्योंकि आपका देखना है, हम आपको विदाउट एनी चार्जेस दें. अब सपोज कि आपने जो हमने क्वेश्चन पुट किया उसका मैं जवाब, सपोज आपने एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया, तो आपके 2 दिन एब्सेंट, आपकी क्लासेस बाकी चल रहा है, तो वो बाद में आप रिवीजन के लिए यूज. तो आप आइडेंटिफाई करो ना, अभी पढ़ते टाइम पे ये टॉपिक में मेरे को वापस शायद जरूरत पड़ेगी, मार्क करके रख लो, ताकि जब आपके पास बच गए 10, समझो 5 छुट्टी ले ली तो 10 बच गया, तो उसमें यूज कर लो वो चीज़. और सेकंड, सपोज आपको वो पूरा यूज हो चुका है, तब नॉमिनल चार्जेस दे. पहली बात है कि हमारा जो टीचिंग होगा वो ऐसा होता है कि आप जिंदगी में वापस रिपीट करो. हमारा नोट्स ऐसा होता है कि आप नोट्स को ही देख के रिवाइज करो. मतलब वापस क्लास में आके पढ़ने की जरूरत नहीं है. रिवीजन करने की जरूरत है, इसका मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं रहे. हो गया. हाँ, मतलब ये भी नहीं है कि घर पे जाके कुछ पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे सर. हाँ, ओ अंकल आंटीज सुन रहे हैं ना, रिवीजन ये जो बैठे हैं यहाँ बड़े वाले, घर पे जाके रिवाइज करना है, रोज पढ़ना है, वो सब है, लेकिन जहाँ समझने की बात आती है तो पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको एक बार में समझ में आए, एक बार नहीं है तो दूसरी बार में आए, लेकिन समझ में जरूर आए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी रिवीजन तो करना होगा. सीए कोर्स में कोई छोटा सा तो कोर्स है नहीं, आपको पता है, वॉल्यूम है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, अपने आप को प्रैक्टिस करनी रहेगी, वो सब रहेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना तो आप रेस्ट एश्योर्ड, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं बनता है ज्वाइन करने का. फिर भी आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो बहुत इच्छा है आपको देखने की, एक और बार देखूंगा सर, प्लीज सर आइए. फिर हम रोकेंगे थोड़ी, भाई भरिए फिर से फी, आपको अगर शौक है तो हम थोड़ी मना करेंगे. आपको आना है, फिर से अटेंड करना है, भूत सवार है हो. और मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे पेरेंट्स को खासकर, आप सुन लीजिए, ये लोग जिद करके अगर आए भी, ये लोग फी पे करेंगे लेकिन क्लास नहीं आएंगे. क्योंकि दूसरी बार जब कोई मूवी देखता है, कितनी भी अच्छी मूवी हो, बोर होती है. सस्पेंस मालूम होता है आगे क्या है, तुम बोर होना ही है. क्या भाई, आई फॉरगॉट योर नेम, यश. थोड़ा सा उसको हुआ होगा कि ये क्वेश्चन अरे मैंने पूछे थे, आंसर कर दिए सर ने. पहले आया था मिलने के लिए, सिमरन आई थी पहले मिलने, तो प्रॉब्लम वो होता है, इट्स ह्यूमन नेचर. को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से. और थोड़ा बहुत जो है 15 क्लासेस आप पहले से संभालो, क्योंकि हफ्ते में अगर मैं एक दिन हम छुट्टी दे रहे हैं आपको, तो और छुट्टी क्या लेना है भाई. तो 15 दिन पूरे प्रिजर्व करके रखिए, और जो है मार्क करिए और वही वॉच कीजिए, बस खत्म. सेशन ऐसा नहीं कि आपको डाउट है, यू विल नॉट हैव डाउट इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. एक ही सब्जेक्ट का डाउट है, एक ही सब्जेक्ट का 2-3 क्लास देखना है. 15 दिन बोल रहे हैं हम, 15 क्लास नहीं. अगर आप थोड़ा नहीं समझे तो मैं बता दूं, एक में 3 सेशन हुए तो 15 × 3 45 सेशन हो गए, वो आपको मिलेंगे. क्योंकि एक दिन मिस, हाँ आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मैं फर्स्ट सेशन मिस कर दिया, 7:30 to 10 नहीं आया कोई रीज़न से, गांव गया था, आने में लेट हो गया, ट्रेन लेट हो गई, अब मैं 10:30 वाला सेशन अटेंड कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं. सर मैं 1:30 बजे वाला लास्ट सेशन 2 घंटे का वो कर, हाँ बिल्कुल, क्यों मिस करना है, एटलीस्ट उतना सेव कर सकते हो. हम मना नहीं करेंगे उसके लिए, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, बस मैं वो बोल रहा हूँ. कोई भी चीज़ मिसयूज हुई तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू देन टेक एक्शन. तो फिर आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे या आपसे बात करेंगे. यू आर ग्रोन अप नाउ, आप लोग बच्चे नहीं हैं अभी, राइट, बड़े हो रहे हो, तो हम आपसे बात करेंगे, समझेंगे आप क्या चाह रहे हो. जहां लगा आप हमको घुमा रहे हो तो फिर पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा वो उस केस में. और एक और है, मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, गार्डियन पेरेंट्स से, ट्रस्ट कीजिए सर, बच्चों पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है. ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, फोकस्ड है, हर चीज़ समझती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है.
अगर हम उन पे ट्रस्ट करेंगे ना, उनका वो जो बोलते हैं ना मनोबल हिंदी में, वो भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो वो गलत खुद नहीं करेंगे। जितना हम उन पे शक करेंगे कि ये करेंगे नहीं करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उतना वो नेगेटिव जा सकते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं देखता हूं, जब मैं बोलता हूं बेटा आप अच्छा करोगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है, बेटा आप ये करोगे, मेरे को मालूम है आप गलत नहीं, सही में वैसा होता है, क्योंकि उसको लगता है पापा को कॉन्फिडेंस है ना, मैं कैसे उसको पीछे कर दूं। और मैं बार बार उसको, तू कर पाएगी क्या, डाउट करते रहेंगे, तू करती है क्या, तू गई थी क्या, तू गया था क्या। जहां ये क्वेश्चंस आने लगे, ट्रस्ट नहीं किया, तो बच्चा हाथ से निकला। और आजकल तो बहुत तरीके हैं, तो इसीलिए ट्रस्ट कीजिए, बिलीव मी, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग। वो और अभी तो वो फाउंडेशन पास होके आएंगे इंटर, उनको खुद को पता है कि आगे लाइफ में क्या है। और हम मैं इसलिए लिखा वो पॉइंट, लोग सोचते हैं क्यों लिख दिया ये, अरे भाई इसमें क्या खास बात है, राइट। आवर अप्रोच में मैंने लिखा ना, मोटिवेशन थ्रू आउट, यही आइडिया है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो सर बोल रहे थे, ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कभी मैं बुलाऊंगा, रोज नहीं बुला सकता सर टाइम का, कभी बुलाऊंगा, आओ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हर इंटरव्यू में यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सीवी तो बना लेते हैं कॉपी करके, पता नहीं होता क्या लिखा है, तो बोलते पहले बोलो अपने बारे में, उतना तो आना चाहिए बोलना, राइट। एक 4 लोगों के बीच में बात करना आना चाहिए, तो सब थोड़ा प्रैक्टिस है। तो हम उसके लिए आपको क्लूज दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं, बट बाकी तो आप पे, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है। 1 साल होता तो फिर भी कर लेते हैं, 6 महीने में सब कुछ करना है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी करेंगे। हाँ, 4 वीक्स प्रोग्राम भी आईसीए ने भी इसीलिए किया है कि आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़े, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाए तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ इट, देन यू कैन प्रैक्टिस इट। अजय मुंदड़ा उनका बेटा जो है वो सीए बना, अभी रिजल्ट आया था ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना है, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में। और बाय गॉड्स ग्रेस हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चिरंजीव सर को उसको पढ़ाने की, तो हम लोग उनके टीचर, मतलब अजय के टीचर्स थे फाउंडेशन इंटर और फाइनल में भी लकीली। तो वो भी एक भगवान की कृपा रहती ना सर, ऐसा मौका मिलना नहीं मिलता बार बार, तो हमको तो मिला वो मौका अजय को पढ़ाने का। वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। अरे सर ऐसा कुछ नहीं, हमारा काम है। थैंक यू, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सर। आप जो चाहें, नहीं तो मैंने कुछ लगाया था एक, आप पढ़ सकते मीनवाइल, कुछ लोगों ने तो पढ़ लिया है। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज ईजी, बिकॉज इफ यू वांट ईजी देन दिस इज नॉट द कोर्स फॉर यू, है ना। और एक मिनट, टेक द रिस्क और लूज द चांस। And before I tell you something more, let us take one question. She has some question. CA इंटर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये समझ लो 60-70% आपका CM में इंटर का भी हो जाता है, करेक्ट सर। सेम सिलेबस है काफी हद तक, और उसका अप्रोच जो है वो उतना एडवांस नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव है उतना नहीं है, और रिजल्ट भी थोड़ा ज्यादा है। तो नॉर्मली जो सीए करता है वो सीएस या सीएमए की कोचिंग अलग से नहीं लेता। हाँ, आर्टिकलशिप का अलग से करना पड़ेगा, वो अलग है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा फिर साथ में। बाकी पढ़ाई क्लासेस आपको जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ CA CS CW नॉर्मली 3 करते हैं लोग, कैसे पढ़ते होंगे, वो पढ़ते एक ही हैं क्या, CA लिखते CS CW है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, हाँ अगर टैलेंट है आप में कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टैलेंट भी नहीं, मैंने सिर्फ टैलेंट बोला। अगर आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग करना आता है, थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज करना आता है, बिल्कुल कर सकते हो। आप ये सोच रहे कि CA बनने के बाद बंदा CS करता है, CS बनने के बाद CWA करता है, बिल्कुल गलत। जो लोग तीनों किए हैं, जैसे अभी मैंने अमित सर का एग्जांपल लिया, CA CS साथ में किया, अमित तातेड़ सर का जो मैंने बताया था आपको फैकल्टी, उनका CA और CS दोनों हुआ है। आपका भी, सॉरी, ओके, तो साथ में करते, बाद में तो रह ही जाता है। आज अगर सर का रह गया तो पक्का बोल सकता हूं, बाद में वो छोड़ दिया होगा ना, बाद में लिखेंगे तो वो रह गया, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ये भी एग्जाम लिख दो वो भी लिख दो,
हो जाता है, ऐसा है। तो उस पर और अगर अपन बात चाहिए तो कर सकते हैं, वी कैन टेक अप दैट क्वेश्चन। हाँ, आई वॉज टेलिंग यू दैट मे बी एक और पॉइंट है जो पेरेंट्स के लिए, अगेन पेरेंट्स गार्डियन के लिए, बेटा बुआ के घर में फंक्शन है, तेरी दीदी की सगाई है, बुआ के घर में फंक्शन है, चल 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में आई जे, आ जा, वहाँ होता है ना ऐसा, 2 घंटे में आ जाएंगे भाई, बुआ के घर में फंक्शन है, चलो प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, उसको सीए करने दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। नहीं, बुआ नाराज हो जाएगी। अगर वो सही में बुआ है तो वो नाराज नहीं होगी, क्योंकि उसको उनको मालूम है ये इसके भविष्य के लिए कर रहा है और आगे उनका भी फायदा है, मायरो भरी ना भाई। Am I right? I think all of you can understand. అత్త ఇంట్లో ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది, వెళ్ళాలి కదా, సీఏ తర్వాత, ఇప్పుడు వద్దు, ओके। सो दिस नो पॉइंट डूइंग ऑल दैट। मैंने ये देखा है, मेरी मॉम भी करती थी, प्रिपेयर कर रहा है, क्या पढ़ता, पूरा दिन पढ़ते रहता, 1 घंटा आ जा आंटी के घर में, वहाँ खाना खा के आ जाना, नहीं तो मेरे को खाना बनाना पड़ता। अच्छा, तो तुम्हारे को खाना बनाना पड़ता बोल के मैं बाजू में आना भी, और वो 1 घंटे के लिए पहले आधा घंटा तैयार होना, फिर जाने को आधा घंटा, 1 घंटा उधर, 1 घंटा बोले तो 2 घंटे होते, फिर वो पूछते अभी भी सीए कर रहा क्या तू? अच्छा, तुम्हारे को मालूम क्या सीए के बारे में? फिर वहां कोई अच्छा दिख भी जाती, वो बैगेज साथ में आता है कि नहीं, यानी मोटा मोटी आधा दिन खराब हो जाता, या कभी कभी पूरा दिन भी हो जाता। वैसे यहां पर अगर वहां गया, उसका मूड नहीं हुआ आने का, वो क्लास पूरा मिस करेगा, और एक क्लास 1 दिन यानी 7 घंटे की पढ़ाई फिर से करना है। आप उसको हेल्प नहीं कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये आंटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये तो आए सामने दिख रहे हैं करके, ये सबके लिए हैं। आप अपने पेरेंट्स को बोलना, बिकॉज सी इफ यू डोंट प्लान, यू डोंट चैनलाइज योर एनर्जीज प्रॉपरली फ्रॉम द डे 1, इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉस लेटर। तो आप सोच लो खुद कितना नुकसान होगा। एंड यार करना है यार, ऐसा मतलब अपने को ढीला नहीं छोड़ना है। अभी जितना जी जान अपने को लगाना है लगाएंगे, और सीए बन के दिखाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन के दिखाएंगे। ये जोश रखना है अंदर, समझा ना? बस वही आइडिया है अपना। सर कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा इन क्लासेस? यहाँ तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया आप, इंग्लिश यू सेड, हिंदी स्लाइटली बहुत ज़्यादा हो गया, हिंदी मारवाड़ी भी डाल दी है बीच में, है ना? क्लासेस ओनली इंग्लिश, एट टाइम्स में भी, एट टाइम्स हिंदी, एट टाइम्स में भी तेलुगु, अभी बोला ना కొంచెం కొంచెం వస్తుంది, at times, otherwise it's English, 99% it's English is the medium of communication. Why? Because you're going to appear IC examination in English medium, you've opted for that, no? So if I make, now just to make you comfortable, let's say I'm using Hindi, will it help? No. Array, I will reduce my level as well, and here we have to increase both the levels, your level and my level has to increase. आपको सोचना इंग्लिश में है, बात करना इंग्लिश में है, जाके लिखना भी इंग्लिश में है, उसकी तैयारी आज से ही करनी है। हिंदी से मुझे भी बहुत प्रेम है, मैं आलोचना नहीं कर सकता हिंदी की, मैं भी भारतवासी हूं, ठीक है, मतलब मुझे भी इंग्लिश हिंदी आती है, अच्छा लगता है, मदर टंग हिंदी है, मारवाड़ी है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज लैंग्वेजेस, पॉइंट इज व्हेन आई हैव टू वर्क इन इंग्लिश, राइट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, सो प्लीज डोंट आस्क अस टू रिड्यूस योर लेवल एंड आवर लेवल. We will use simple English for sure, so that you can understand it. हाई फंडा इंग्लिश नहीं, जहां यूज किया है फंडा वर्ड उसका मतलब समझाएंगे ताकि आपका भी लेवल बढ़े. बट हिंदी हिंदी मत पूछना बार बार, जितना हो सके. अगर सर भी, मतलब मैं भी बात कर रहा हूं हिंदी में, यू प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश. वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी बिकम सीए एंड यू आर, डोंट से नॉट, से येट टू बिकम सीए. So keep that in mind and use it. It's for your benefit, guys. और कुछ? अभी हम लोग 4 हैं, 4 में से अगर आपको स्पेसिफिकली भी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. चिरंजीव सर कुछ बोले ही नहीं, बहुत कम बोले. रमाकांत सर तो एक स्टेटमेंट दिए. अगर आपके दिमाग में ऐसा है कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं आप बिल्कुल. नो? थैंक यू सो मच. बोर्ड नहीं है? हाँ हाँ हाँ. अच्छा एक मिनट सर, मैं बता देता हूँ ना, बोर्ड नहीं है. चलिए. नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है. 1 मिनट, लेकिन मैं अभी आपको तुरंत बता देता हूँ ना.
अच्छा है ना सर, सोचना चाहिए। बहुत आगे बहुत आगे साहब, मगर क्या है मालूम है, कुछ करना बोल रही वो सभी को आती है सर आजकल। दोस्ता उसको। So what are your queries? Let's take one by one. ठीक है? Your query was whether there will be mock test or not, and if at all there is a mock test, whether it will be 1, 2 or not. 2, 3, 4. हो गया ना? बोर्ड रेडी है अपने पास? बोर्ड है, काम बोलो नहीं है ये। अब आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है सर? उल्टा आपका तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, प्रोजेक्टर चलेगा पूरा टाइम, लाइट चालू रखनी पड़ेगी, ये लाइट बंद रखनी पड़ेगी, बाकी की लाइट चालू रखनी पड़ेगी, ये सब होगा, है ना? अरे बाबा, लेकिन अभी आपने देखा होगा, आप मैंने डायरेक्ट ये फाइल ओपन नहीं की, न्यू फाइल, सॉरी, मैंने पहले ये फाइल ओपन की। अभी मेरे लास्ट बैच का ओके जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा था, ये देखिए सब अवेलेबल है। नाउ डू यू थिंक अगर आपने कुछ मिस कर दिया, नहीं लिखा आपने, ओके, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बेनिफिट हुआ ना इससे। और अगर वही व्हाइट बोर्ड होता यहाँ पे मैं लिखता तो शेयर नहीं कर सकता, मिटाना पड़ता। दूसरा चीज, जो चीज मैंने लिखी है मुझे रिवाइज करना है तो मैं तो ये वापस लेकर आ सकता हूँ, जैसे अभी मैं लेकर आया। रिवाइज करना मेरे लिए ईजी है, आपके लिए ईजी है नहीं है? है, ईजी है। सो टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड हो रही है तो हम लोग को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। वो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का जमाना जा रहा है। हम मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर मस्त एकदम लिखना। हम एक जगह बैठना किसको अच्छा लगता है? आपको लग रहा होगा सौर तो एक जगह मस्त बैठे हैं, आके देखो बैठ के एक जगह। सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा तो जेल में भी मूव होते हैं थोड़ा, यहाँ तो मूव ही नहीं हो सकता, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, क्योंकि इसका इफेक्टिवनेस ज्यादा है। इसमें देखिए कलर्स यूज कर रहे हैं, फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। ऐसा वन नोट है, ये विंडोज जर्नल बोलते हैं इसको, वैसे वन नोट सर यूज करते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप क्योंकि सोचेंगे अरे अकाउंट खत्म हो रहा है तो कैसे, इसलिए वन नोट भी एक आता है, उसमें आप मूव भी कर सकते हो। आप ये सब देख सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लोग कैसे यूज करते हैं, हम भी यूज करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, विल टेक केयर। एंड एक चीज अच्छी है, इफ यू हैव डाउट्स लाइक दिस और इफ यू हैव इनपुट्स लाइक दिस, प्लीज डोंट हेजिटेट, शेयर करो। अगर कुछ रीजनेबल आप पूछ रहे हो, रीजनेबल कुछ आप सजेस्ट कर रहे हो, हम भी चाहेंगे उसको यूज करना या अडॉप्ट करना। हाँ, अनरीजनेबल कुछ पूछ रहा है, सर रिक्लाइनर लगाओ क्लास में, सोफा लगाओ, यहाँ पे एक रेस्ट रूम होना चाहिए सर, ऑब्वियसली वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदरवाइज सब्जेक्ट रिलेटेड आपने ऐसा पूछा, अच्छा लगा मुझे कि आप इतना सोचते हैं, दैट्स गुड, यू शुड हैव दैट। एज सर सेड, देन यू विल डेफिनेटली बिकम अ डिजर्विंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ऑडिट में जब आप जाओगे तो आपको वैसे ही सोचना है ना, आगे का सोचता रहना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। सिंपल हम लोग का जो प्रोसेस है, जो हमने मेरे सोचा है, will be not only